تو آج ہم اسٹیون ہاکنگ کی شرح آفاق کتاب A Brief History of Time کے بالکل شروع یعنی پیش لفظ اور پہلے باب پر بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اور ہاکنگ نے شروع ہی میں پیش لفظ میں اپنا مقصد بڑا واضح کر دیا تھا. ہاں کہ کائنات کے جو بڑے گہرے سوال ہیں نا جی وہ صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں ہیں. بالکل. وقت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، یہ سب ہم سب جاننا چاہتے ہیں. بالکل. اور شاید یہی وجہ تھی کہ یہ کتاب اتنی زیادہ کامیاب ہوئی، بیسٹ سیلر رہی، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئی. لوگ واقعی ان سوالات میں دلچسپی رکھتے ہیں. اچھا، پیش لفظ میں انہوں نے کتاب کو اپڈیٹ کرنے کا بھی ذکر کیا تھا. جی ہاں، کیونکہ سائنس تو رکتی نہیں، نئی چیزیں سامنے آ رہی تھیں. ہاں. جیسے کیا کہتے ہیں، ورم ہولز، ٹائم ٹریول کا امکان، اور ایک مکمل یونیفائیڈ تھیوری کی تلاش جو ہر چیز کی وضاحت کر سکے. اور وہ COB سیٹلائٹ کا ذکر، وہ کیا تھا؟ وہ بہت اہم تھا. CROB نے کائنات کی بالکل ابتدائی روشنی یعنی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ میں بہت ہی ہلکے سے اتار چڑھاؤ دیکھے. اچھا. یوں سمجھیں کہ یہ کائنات کی پیدائش کے وقت کے نشانات ہیں، اور یہ اس خیال کو بھی سہارا دیتے ہیں کہ شاید کائنات کی کوئی سرحد یا کنارہ نہیں ہے. تو پیش لفظ ایک طرح سے اسٹیج سیٹ کرتا ہے. جی. پھر پہلا باب آتا ہے کائنات کے بارے میں ہمارا تصور. جی، اور یہ باب ہمیں ماضی میں لے جاتا ہے. ارسطو سے شروع ہوتا ہے، تقریباً 340 قبل مسیح. وہ مانتے تھے کہ زمین گول ہے. ہاں، اور اس کے دلائل بھی دیے، جیسے چاند گرہن کے وقت زمین کا سایہ ہمیشہ گول ہوتا ہے، یا جیسے جیسے آپ شمال کی طرف جائیں قطبی ستارہ اونچا ہوتا جاتا ہے. صحیح. لیکن وہ یہ بھی مانتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، اور باقی سب کچھ، چاند، سورج، سیارے، ستارے، وہ شفاف کروں میں اس کے گرد گھومتے ہیں. یہ بطولمیوس والا ماڈل. جی، بطولمیوس نے اسے مزید بہتر کیا، اور یہ ماڈل تقریباً 1500 سال تک چلا. چرچ نے بھی اسے قبول کر لیا تھا. لیکن پھر تبدیلی آئی، کوپرنکس. ہاں، 1514 میں انہوں نے کہا نہیں، زمین نہیں، سورج مرکز میں ہے، اور زمین باقی سیاروں کی طرح اس کے گرد گھومتی ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی اس وقت کے حساب سے. بہت بڑی، اسی لیے شاید شروع میں نام بھی ظاہر نہیں کیا. پھر آئے گیلیلیو اور کیپلر. گیلیلیو کی دوربین. بالکل. گیلیلیو نے دوربین سے دیکھا کہ مشتری کے گرد چاند گھوم رہے ہیں، مطلب ہر چیز زمین کے گرد نہیں گھومتی. اور کیپلر نے کہا کہ سیاروں کے مدار گول نہیں بلکہ بیضوی یعنی انڈے جیسے ہیں، اور اس سے مشاہدات بالکل ٹھیک ٹھیک میچ ہو گئے. یعنی ماڈل بہتر ہوتا گیا، پہلے زمین مرکز، پھر سورج مرکز، پھر مدار بھی گول نہیں، بیضوی. جی، اور پھر وہ شخص آیا جس نے بتایا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، نیوٹن. آئزک نیوٹن، پرنسپیا میتھمیٹیکا، 1687. جی ہاں، نیوٹن نے حرکت کے قوانین اور سب سے بڑھ کر کشش ثقل یعنی گریوٹی کا قانون دیا. وہی سیب والی کہانی. ہاں، وہ کہانی مشہور ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ نیوٹن نے دکھایا کہ وہی قوت جو سیب کو زمین پر کھینچتی ہے، وہی چاند کو زمین کے گرد اور سیاروں کو سورج کے گرد گھماتی ہے. اس ایک قانون نے سب کچھ بدل دیا. بہت کچھ. وہ آسمانی کروں کا تصور ختم ہو گیا، ستارے بس دور دراز کے سورج بن گئے. لیکن ایک سوال پھر بھی تھا، اگر ہر چیز ہر دوسری چیز کو کھینچ رہی ہے تو ستارے آپس میں ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ نیوٹن کا خیال تھا کہ اگر کائنات لامحدود ہو اور ستارے ہر طرف یکساں پھیلے ہوں تو ہر ستارے پر ہر طرف سے برابر کھنچاؤ ہوگا، تو وہ کہیں گرے گا نہیں. مگر یہ بات کچھ ادھوری سی لگتی تھی. اور ایک اور مسئلہ تھا جسے بعد میں آلبرٹس پیراڈاکس کہا گیا. وہ کیا تھا؟ کہ اگر کائنات لامحدود ہے اور ہمیشہ سے ہے اور اس میں لامحدود ستارے ہیں تو رات کو آسمان اتنا تاریک کیوں ہے؟ اسے تو ہر طرف سے روشن ہونا چاہیے تھا. ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے. اس کا کیا جواب نکلا؟ ایک ممکنہ جواب یہ تھا کہ شاید ستارے ہمیشہ سے نہیں چمک رہے، مطلب کائنات کا ایک آغاز تھا. آغاز؟ یہ تو پھر پرانے خیالات اور مذہبی تصورات سے ملتا جلتا ہے. جی، بہت سے قدیم فلسفوں اور مذاہب میں کائنات کے آغاز کا تصور ہے. سینٹ آگسٹن نے تو یہ دلیل بھی دی تھی کہ اگر کائنات ہمیشہ سے ہوتی تو تہذیب اب تک بہت زیادہ ترقی کر چکی ہوتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت خود کائنات کے ساتھ شروع ہوا. بالکل. ان کا نقطہ تھا کہ یہ پوچھنا کہ خدا نے کائنات بنانے سے پہلے کیا کیا
بے معنی ہے क्योंकि पहले का वक्त था ही नहीं। ये गहरी बात है। जी, दूसरी तरफ अरस्तु जैसे फलसफी अबदी कायनात के कायल थे। कॉन्ट ने भी इस पर बहस की कि आगाज और अबदियत दोनों के दलाइल में तजादात हैं। तो ये बहस चलती रही, फिर 20वीं सदी आई और एडविन हबल 1929 में उन्होंने एक इनकलाबी दरियाफ्त की। क्या दरियाफ्त? उन्होंने देखा कि दूर की कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर है उतनी ही तेजी से दूर जा रही हैं। मतलब कायनात फैल रही है। तो अगर हम वक्त में पीछे जाएं तो कायनात छोटी, गर्म और ज्यादा कसीफ होती जाएगी। और अगर बहुत पीछे जाएं तो माजी में एक ऐसा लम्हा रहा होगा जब सारी कायनात, सारा मादा और तवानाई एक नाकाबिल तसव्वुर हद तक छोटे, गर्म और कसीफ नुक्ते में बंद थी और फिर वो फैलना शुरू हुआ। बिग बैंग? यही बिग बैंग है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं, ये वक्त और स्पेस का आगाज था। तो इससे कायनात की उम्र का अंदाजा लगा, तकरीबन 14 अरब साल। जी, मौजूदा अंदाजा यही है। और बिग बैंग से पहले क्या था, ये सवाल फिर बेमानी हो जाता है क्योंकि वक्त ही वहाँ से शुरू हुआ। ये सब हमें बाबे अव्वल के आखिर में साइंस के तरीके कार पर ले आता है। हॉकिंग कहते हैं कि साइंसी नजरिया क्या होता है? उनके मुताबिक एक अच्छा नजरिया एक मॉडल होता है, कुछ उसूलों के साथ जो मुशाहिदात की वजाहत करता है और ऐसी पेशगोइयां करता है जिन्हें टेस्ट किया जा सके, जिन्हें गलत साबित किया जा सके। मतलब कोई भी नजरिया हतमी सच्चाई नहीं होता? नहीं, कार्ल पॉपर का भी यही फलसफा था। नजरियात हमेशा आर्जी होते हैं, उन्हें बेहतर किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है अगर कोई नया मुशाहिदा उनसे मेल ना खाए। जैसे न्यूटन का नजरिया आइंस्टाइन के नजरिए से बेहतर हुआ। और अब साइंस का बड़ा मकसद क्या है? एक मुकम्मल मुत्तहिद नजरिया, यूनिफाइड थियरी। वो क्या चीज है? देखें, हमारे पास अभी दो बड़े कामयाब नजरियात हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी जो कशिश सकल और बड़ी चीजों जैसे सियारे, सितारे, कहकशाएं को समझाती है। सही। और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स जो बहुत छोटी चीजों, एटम, जर्रात और बाकी 3 बुनियादी कुव्वतों को समझाती है। तो मसला क्या है? मसला ये है कि ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते, खास तौर पर शदीद हालात में, जैसे बिग बैंग के वक्त या ब्लैक होल के अंदर। इन दोनों को मिलाने वाला नजरिया, जिसे क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं, अभी तक नहीं मिल सका। तो ये आज की फिजिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, एक ऐसा नजरिया जो कायनात की हर चीज को बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पैमाने पर एक ही छतरी के नीचे बयान कर सके। तो खुलासा ये हुआ कि हॉकिंग हमें पेश लफ्ज में दावत देते हैं कि आओ कायनात को समझें, और पहला बाब हमें दिखाता है कि यह समझ वक्त के साथ कैसे बदली है। कछुओं पर टिकी जमीन से लेकर बिग बैंग तक का सफर। बिल्कुल, इल्म का एक मुसलसल इर्तिका। और आखिर में एक सवाल जहन में आता है, जिस तरह आज हम अरिस्तु के मॉडल को या कछुओं वाली कहानी को देखते हैं, क्या मुमकिन है कि आज जो नजरियात हमें इतने पक्के लगते हैं, जैसे जनरल रिलेटिविटी या क्वांटम मैकेनिक्स, हाँ, क्या आने वाली नस्लें उन्हें भी नामुकम्मल या शायद थोड़ा अजीब समझेंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। शायद इल्म का सफर कभी खत्म ना हो। अच्छा, तो आज हम स्टीफन हॉकिंग की किताब के दूसरे बाब मकानो जमान में गहराई तक जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कायनात पर हमारे ख्यालात कैसे बदले। जी बिल्कुल। लेकिन ये बाब, ये तो हमारे रोजमर्रा के वो जो बदीही तसव्वुरात है ना, उनको चैलेंज करता है। सही। ये बाब असल में न्यूटन के मुतलक मकानो जमान के तसव्वुर से हमें आइंस्टाइन की दुनिया में ले जाता है, जहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है, लचकदार है, जामिद नहीं है। बिल्कुल। और इस गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि समझे कि कैसे रोशनी की रफ्तार, इजाफियत, ये चीजें हमारे आम फहम को कैसे चैलेंज करती हैं। और ये सवाल कि क्या वक्त वाकई सबके लिए एक रफ्तार से गुजरता है, ये तो बड़ा बुनियादी सवाल है। जी। और क्या खला बस खाली जगह है, या यूं समझे मादा और तवानाई की मौजूदगी में मुड़ भी सकता है? ये बाब हमें 4 जिहतों में सोचने पर उकसाता है। शुरुआत तो अरस्तु से हुई थी। उनका ख्याल था कि चीजों की कुदरती हालत सुकून है। जी, और हरकत के लिए कोई ना कोई कुव्वत चाहिए। मंतकी लगता है ना। और ये भी कि भारी चीजें हल्की चीजों से तेज गिरती हैं।
हाँ, लेकिन ये सब मतलब कि सिर्फ सोच विचार पर मबनी था, कोई तजुर्बाती सबूत नहीं था। और वहीं फिर गैलीलियो आए। बिल्कुल, वो पिज़्ज़ा टावर वाली कहानी वो तो शायद सच ना हो, लेकिन उन्होंने वो जो ढलवान सतह पर तजुर्बात किए, हाँ, गेंदों वाले। जी, मुख्तलिफ वजन की गेंदों को लुढ़काकर, और साबित किया कि अगर हवा की मज़ाहमत को हटा दें तो वजन से फर्क नहीं पड़ता, सब चीजें एक ही शरह से अपनी रफ्तार बढ़ाती हैं। अच्छा, यानी मुशाहिदे ने सदियों पुरानी सोच बदल दी। वो चांद वाला तजुर्बा भी तो था। हाँ, खलाबाज डेविड स्कॉट का एक पंख और एक हथौड़ा, चांद पर हवा तो है नहीं, तो दोनों एक साथ गिरे, कमाल था वो। इसी बुनियाद पर फिर न्यूटन ने अपने कवानीन बनाए, हरकत के कवानीन। जी, पहला कानून तो वही कि जिस्म अपनी हालत बरकरार रखता है जब तक कोई बैरूनी कुव्वत ना हो। सुकून या सीधी हरकत। बिल्कुल। और दूसरा कानून वो एक्सेलरेशन वाला कि कुव्वत ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, लेकिन कमियत यानी मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम। F = ma। और सबसे मशहूर कशिश सकल का कानून कि हर जिस्म दूसरे को खींचता है। जी, और ये खिंचाव उनकी कमियतों पर और उनके दरमियान फासले पर मुनहसर है, फासले के मुरब्बा के बिलक्स मुतनासिब। इन कवानीन का एक गैर मुतवक्का नतीजा भी निकला था ना, मुतलक सुकून के बारे में। हाँ, कि कायनात में कोई मुतलक रुकी हुई जगह नहीं है। वो ट्रेन वाली मिसाल बहुत अच्छी है। पिंग पोंग वाली। जी, ट्रेन में खेले या प्लेटफॉर्म पर, गेंद के कवानीन तो वही रहेंगे, तो आप बता ही नहीं सकते कि असल में हरकत कौन कर रहा है। मतलब खला में कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। ये तो न्यूटन के लिए भी परेशानी की बात होगी। जी, वो खुद इस पर यूं समझे मुतफक्किर थे। लेकिन एक चीज पर तो वो और अरस्तू भी मुत्तफिक थे, मुतलक वक्त। हाँ, कि वक्त एक दरिया की तरह है, सबके लिए हर जगह एक ही रफ्तार से बह रहा है। ये ख्याल बड़ा मतलब आरामदेह है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, खास तौर पर जब आप रोशनी की रफ्तार के करीब जाते हैं। अच्छा, तो रोशनी की रफ्तार का मामला कब सामने आया? इसका अंदाजा तो ओले रोमर ने 1676 में ही लगा लिया था कि ये महदूद है। फिर 1865 में मैक्सवेल की थियरी आई। उसने पेशगोई की कि रोशनी एक खास मुस्तकिल रफ्तार से सफर करती है। जी, लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि किस चीज के निस्बत से मुस्तकिल। यही वो ईथर का नजरिया आया। एक फर्जी मीडियम जो पूरे खला में भरा हुआ है। बिल्कुल, जैसे आवाज हवा में सफर करती है। लेकिन फिर वो मशहूर माइकलसन मोर्ले तजर्बा हुआ 1887 में, और उसने ईथर को नहीं पाया। जी, वो नाकाम रहा। नतीजा ये निकला कि रोशनी की रफ्तार हर सिमत में, हर देखने वाले के लिए एक ही है, चाहे जमीन ईथर में से गुजर रही हो या नहीं। ये तो वाकई अजीब बात थी। अगर रोशनी की रफ्तार सबके लिए एक है तो फिर कुछ और बदलना होगा। बिल्कुल, और वही कुछ और आइंस्टाइन ने बताया 1905 में अपने खुसूसी नजरिए इजाफियत में। बुनियादी मफरूजा क्या था? कि साइंस के कवानीन बशमूल रोशनी की रफ्तार तमाम आजादाना हरकत करने वाले मुबसिरीन के लिए यकसा हैं। जी, इस एक बात ने ईथर की जरूरत खत्म कर दी। और मुतलक वक्त का तस्वर भी खत्म हो गया। जी बिल्कुल, वक्त मुतलक नहीं रहा। ये सबसे बड़ा धचका था। इसके नताइज तो सुना है बड़े हैरान कुन थे। E = mc²। हाँ, पहला तो यही कि कमियत और तवानाई एक ही चीज के दो रुख हैं। मादा तवानाई की एक बहुत ही क्या कहते हैं मुर्तकिश शक्ल है। और ये कि कोई चीज रोशनी से तेज नहीं चल सकती। जी, क्योंकि जैसे रफ्तार बढ़ती है कमियत भी बढ़ती जाती है। रोशनी की रफ्तार पर कमियत लामहदूद हो जाएगी, जिसके लिए लामहदूद तवानाई चाहिए, जो मुमकिन नहीं। और सबसे अहम वक्त का मामला कि वक्त मुतलक नहीं है। आप जितनी तेजी से हरकत करेंगे आपके लिए वक्त उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। इसे टाइम डायलेशन या वक्त का फैलाव कहते हैं। कमाल है। तो मकान और जमान अलग नहीं रहे? नहीं, वो एक चार जहती साख्त मकान जमान या स्पेस टाइम में आपस में बुने हुए हैं। लेकिन एक मसला था, खुसूसी इजाफियत न्यूटन के कशिशे सकल के कानून से मेल नहीं खाती थी। सही, न्यूटन का कानून कहता था कि कशिशे सकल का असर फौरन होता है, फासले से कता नजर, जबकि खुसूसी इजाफियत कहती थी कि कोई चीज रोशनी से तेज नहीं चल सकती, हत्ता के मालूमात भी। तो फिर इस तजाद का हल कैसे निकला? आइंस्टाइन ने इस पर मजीद काम किया, तकरीबन 10 साल, और 1915 में पेश किया उमूमी नजरिया इजाफियत।
ये इससे भी ज्यादा इनकलाबी था। ओह, बहुत ज्यादा। इसने कहा कि कशिश शकल असल में कोई कुव्वत है ही नहीं। कुव्वत नहीं है तो फिर क्या है? सियारे सूरज के गिर्द क्यों घूमते हैं? आइंस्टाइन ने कहा कि ये मकान जमान का खम है। मादा और तवानाई जैसे सूरज अपने इर्द गिर्द के मकान जमान को खम दे देते हैं, बिल्कुल जैसे कोई भारी गेंद ट्रैम्पोलिन को झुका देती है। अच्छा। और सैयारे जैसे जमीन इस खमीदा मकानो जमान में सीधा चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि मकानो जमान खुद खमीदा है तो उनका रास्ता हमें एक मदार की शक्ल में नजर आता है। वो असल में मुख्तसर तरीन रास्ता यानी जियोडेजी इख्तियार करते हैं। वाह, तो कशिश शकल असल में ज्योमेट्री है, मकानो जमान की शक्ल है। बिल्कुल, और इसका मतलब था कि ये रोशनी को भी मोड़ सकती है, जिसकी तस्दीक फिर हुई 1919 के सूरज ग्रहण में। जी हाँ, दूर के सितारों की रोशनी सूरज के करीब से गुजरते हुए वाकई मुड़ गई, बिल्कुल उतनी ही जितनी थ्योरी ने पेशगोई की थी। और वक्त के बारे में भी कुछ पेशगोई थी। जी, कि भारी अजसाम के करीब जहाँ कशिश शकल ज्यादा है वहाँ वक्त आहिस्ता गुजरता है। इसकी भी तस्दीक हुई 1962 में। वाटर टावर तजुर्बा। हाँ, और आजकल जो जीपीएस सिस्टम है ना, उसे सही काम करने के लिए इस असर को यानी वक्त के आहिस्ता गुजरने को हिसाब में रखना पड़ता है, वरना वो गलत पोजीशन बताएगा। ये तो रोजमर्रा जिंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। वो जुड़वा तजाद ट्विंस पैराडॉक्स का क्या मामला है? वो उसी टाइम डायलेशन का एक यूं समझे फिक्री तजुर्बा है। एक जुड़वा जमीन पर रहे, दूसरा तेज रफ्तार खलाई जहाज में सफर करके वापस आए। तो वापस आने वाला जवान रह जाएगा? जी, क्योंकि उसने तेज हरकत की, उसके लिए वक्त आहिस्ता गुजरा। ये कोई तजाद नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि हर शख्स का अपना जाती वक्त होता है, मुतलक वक्त नहीं है। तो खुलासा करें तो ये बाप तो हमारे मकान और जमान के बारे में सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, वक्त कोई आलमी घड़ी नहीं, मकान कोई खाली स्टेज नहीं, ये दोनों एक मुतहर्रिक लचकदार कायनाती ताने बाने का हिस्सा हैं, जिसे हरकत और कशिश शकल शक्ल देते हैं। जी, आइंस्टाइन की बसीरत ने फिजिक्स का एक नया दौर शुरू किया। अब टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल्स, कायनात का आगाज ये सिर्फ कहानियां नहीं रही, बल्कि साइंसी तहकीक के संजीदा सवालात बन गए हैं। बिल्कुल, मकान और जमान अब कायनात से अलग नहीं बल्कि इसी का हिस्सा हैं, इस पर असर डालते हैं और इससे मुतासिर होते हैं। तो अगली बार हम इससे भी गहराई में जाएंगे, फैलती हुई कायनात का जायजा लेंगे। ये सफर तो अभी जारी है। जी, और एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। अगर मादा और तवानाई मकान और जमान को खम दे सकते हैं, तो क्या बहुत ही ज्यादा मादा जैसे किसी ब्लैक होल के मरकज में, क्या वो मकान और जमान की साख्त को मुकम्मल तौर पर मतलब के तोड़ भी सकता है? ओह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। जी, ये वो सवालात हैं जो हमें कायनात की इंतहाओं तक ले जाते हैं। अच्छा, तो पिछली बार हमने देखा था कि ज़मानो मकान ये सिर्फ खाली स्टेज नहीं है, बल्कि एक जिंदा हकीकत है जिसे मादे और तवानाई शक्ल देते हैं। जी बिल्कुल। और अब बाब 3 में स्टीफन हॉकिंग हमें, आप कह लें, नजरिए से मुशाहिदे की दुनिया में ले जा रहे हैं। हाँ, और ये मुशाहिदा 20वीं सदी की शायद सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक है कि कायनात साकिन नहीं है, फैल रही है। बिल्कुल, ये फैल रही है। हबल के मुशाहिदात, रेड शिफ्ट, बिग बैंग थ्योरी, ये सब इस बाब में है। कैसे पता चला कि कहकशाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं? और इस दरियाफ्त का मतलब सिर्फ सितारों या कहकशाओं तक महदूद नहीं था, इसने तो वक्त और जगह की इब्तिदा के बारे में हमारे ख्यालात ही बदल दिए। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हमारी अपनी कहकशा मिल्की वे ये कायनात में वाहिद नहीं है। जी, ये आज हमें आम सी बात लगती है, लेकिन एक वक्त था जब ये मालूम नहीं था। 1924 में एडविन हबल ने ये साबित किया कि आसमान पर नजर आने वाले वो धुंधले से धब्बे वो असल में दूर दराज की कहकशाएं हैं, और इनके दरमियान बहुत वसी फासले हैं। फिर सवाल था, कितनी दूर? हबल ने इसके लिए सितारों की चमक का इस्तेमाल किया। हाँ, कुछ खास किस्म के सितारे होते हैं जिनकी असल रोशनी यानी ल्यूमिनोसिटी हमेशा एक जैसी रहती है, जैसे कोई स्टैंडर्ड वॉट का बल्ब हो। बिल्कुल। तो जमीन से वो कितने मध्यम नजर आते हैं उससे उनका फासला पता चल जाता है। अच्छा,
तो फासले मालूम हो गए। उसके बाद आई रोशनी की तैफ यानी स्पेक्ट्रम की। देखें, जब रोशनी को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने रंगों में बिखर जाती है, रेनबो की तरह। जी, और सितारों की रोशनी के इस स्पेक्ट्रम से उनका टेम्परेचर, उनमें कौन से केमिकल हैं, ये सब पता चलता है। ठीक। लेकिन 1920 की दहाई में माहिरीन फल्कियात ने दूसरी गैलेक्सियों के सितारों के स्पेक्ट्रम में एक अजीब चीज नोट की। कुछ रंग गायब थे, वैसे ही जैसे हमारी कहकशां के सितारों में होते हैं, मगर क्या? वो सारे रंग स्पेक्ट्रम के सुर्ख सिरे की तरफ यानी रेड एंड की तरफ थोड़े से खिसके हुए थे, शिफ्ट हुए थे। सुर्ख सिरे की तरफ? इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये डॉपलर इफेक्ट वाली बात है, जैसे एम्बुलेंस की आवाज बदलती है? बिल्कुल वही। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे दूर जाती हुई एम्बुलेंस की सायरन की आवाज की पिच कम हो जाती है, यानी आवाज की लहरें लंबी हो जाती हैं। हाँ। इसी तरह अगर कोई कहकशां हमसे दूर जा रही हो तो उससे आने वाली रोशनी की लहरें भी खिंचकर लंबी हो जाती हैं, और लंबी रोशनी की लहरें हमें ज्यादा सुर्ख नजर आती हैं। तो रेड शिफ्ट का मतलब है कि वो चीज हमसे दूर जा रही है। बिल्कुल। और हबल ने जो देखा वो ये था कि तकरीबन तमाम कहकशाएं रेड शिफ्टेड हैं। वो सब हमसे दूर जा रही हैं। सब की सब? तकरीबन सब। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि जो कहकशाएं जितनी ज्यादा दूर हैं, वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। जी, ये सीधा सीधा सबूत था कि कायनात फैल रही है। ये तो नाकाबिले यकीन दरियाफ्त थी। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। न्यूटन, आइंस्टाइन, वो तो साकिन कायनात मानते थे ना? हाँ, सबके लिए ये बहुत बड़ा धचका था। आइंस्टाइन ने तो अपनी थियरी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी डाल दिया था ताकि कायनात को फैलने से रोका जा सके। अच्छा? जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक रूसी साइंसदान अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने हबल की इस दरियाफ्त से भी पहले 1922 में ही, यानी मुशाहिदे से पहले, हाँ, आइंस्टाइन की अपनी जनरल रिलेटिविटी की बुनियाद पर ये पेशगोई कर दी थी कि कायनात साकिन नहीं हो सकती, इसे या तो फैलना होगा या सिकुड़ना होगा। कमाल है, यानी थियरी ने पहले ही इशारा दे दिया था। बिल्कुल। फ्रीडमैन के मॉडल्स दो सादा मफरूजों पर मबनी थे कि कायनात हर तरफ से एक जैसी दिखती है, और ये बात आप कहीं से भी देखें सच होगी। और उन मॉडल से क्या नतीजा निकला? यही कि अगर कायनात फैल रही है तो माजी में जरूर एक ऐसा वक्त आया होगा जब सब कुछ एक नुक्ते पर जमा था, इंतहाई कसीफ, इंतहाई गर्म। बिग बैंग। जी, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। और फिर एक और सबूत मिला, वो भी इत्तेफाकन। हाँ, 1965 में दो अमरीकी साइंसदान पेंजियस और विल्सन बेल लैब्स में एक बहुत हसास माइक्रोवेव एंटीना पर काम कर रहे थे। जी। उन्हें हर सिम्ट से एक मुस्तकिल हल्की सी रेडिएशन मिल रही थी, एक तरह का शोर। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कहाँ से आ रहा है। और वो क्या निकला? वो दरअसल बिग बैंग की बची हुई हरारत थी, कायनात के इब्तिदाई दौर की गर्मी जो अब ठंडी होकर माइक्रोवेव्स की शक्ल में हर तरफ फैली हुई है। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। वाओ, ये तो बहुत बड़ा सबूत था। जी हाँ, इसने बिग बैंग मॉडल को बहुत मजबूत कर दिया। कुछ मुतबादिल नजरियात थे जैसे स्टेडी स्टेट थ्योरी, लेकिन रेड शिफ्ट और खास तौर पर CMB के शवाहिद ने बिग बैंग को ही सही साबित किया। और फिर पेनरोज और हॉकिंग ने रियाजी से भी साबित किया कि अगर जनरल रिलेटिविटी दुरुस्त है तो बिग बैंग सिंगुलैरिटी लाजमी है। जी, इन्होंने साबित किया कि माजी में एक ऐसा नुक्ता जरूर होना चाहिए जहां कसाफत और खमीदगी लामहदूद थी, यानी सिंगुलैरिटी। ये वो जगह है जहां हमारी फिजिक्स के जाने पहचाने कवानीन काम करना छोड़ देते हैं। तो खुलासा ये कि कायनात फैल रही है, इसका एक आगाज था बिग बैंग, और ये मुशाहिदे और नजरिए के मिलाप से पता चला। बिल्कुल, ये दरियाफ्त वाकई इनकलाबी थी। इसने बताया कि वक्त का भी एक आगाज था। हॉकिंग इस बाब में यही दिखाते हैं कि कैसे मुशाहिदा और नजरिया मिलकर कायनात के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाते हैं। जी, ये साइंस का तरीकाकार है, एक दूसरे को चैलेंज करना और बेहतर बनाना। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, अगर कायनात बिग बैंग सिंगुलैरिटी से शुरू हुई जहां हमारे कवानीन काम नहीं करते, तो क्या हम कभी जान सकेंगे कि उस शुरू से पहले क्या था, या ये सवाल ही बेमाना है?
یہ وہ گہرے سوالات ہیں جو ہمیں مزید تحقیق پر اکساتے ہیں، اور اگلی بار ہم اور بھی عجیب و غریب چیزوں کی دنیا میں قدم رکھیں گے، بلیک ہولز اور کوانٹم میکینکس، جہاں ہماری سمجھ کو مزید چیلنجز درپیش ہوں گے۔ جی، کائنات پھیل رہی ہے اور ہماری اسے سمجھنے کی جستجو بھی جاری ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے کائنات کو عمومی اضافیت کے بہت بڑے کینوس پر دیکھا تھا، یاد ہے؟ گیلیکسیاں، فاصلے، زمان و مکان کا وہ عجیب سا تانا بانا۔ جی بالکل، وہ ایک وسیع نظر تھی۔ آج ہم اسٹیون ہاکنگ کی کتاب کے چوتھے باب میں جا رہے ہیں، عدم یقین کا اصول۔ تو اب بہت بڑی چیزوں سے ہٹ کر بہت ہی چھوٹی چیزوں کی بات ہوگی۔ بالکل، کوانٹم میکینکس کی دنیا یہ بہت ہی عجیب اور دلچسپ ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ 19ویں صدی میں ایک سائنسدان تھے، لاپلیس۔ ان کا خیال تھا کہ کائنات ایک مشین کی طرح ہے۔ جی ہاں، ان کا نظریہ تھا سائنسی جبریت کا، مطلب اگر آپ کو ایک لمحے میں کائنات کی ہر چیز کی پوزیشن اور رفتار معلوم ہو جائے تو آپ مستقبل میں ہونے والی ہر چیز بتا سکتے ہیں، جیسے نیوٹن کے قوانین سے سیاروں کی چال پتہ چلتی ہے۔ بالکل، یہی سوچ تھی کہ کائنات مکمل طور پر پریڈکٹیبل ہے، اور یہ خیال کافی عرصے تک سائنس میں غالب رہا۔ لیکن پھر کوئی مسئلہ آیا۔ ہاں، ایک بڑا مسئلہ۔ کلاسیکی فزکس کے حساب سے جو گرم چیزیں ہوتی ہیں جیسے ستارے، جی، انہیں تو لامحدود شرح سے توانائی خارج کرنی چاہیے تھی، خاص طور پر زیادہ فریکوینسی پر۔ لامحدود توانائی، یہ تو عجیب بات ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا، اسے ریلے جینز قانون کی ناکامی کہتے ہیں۔ یہاں آ کر کلاسیکی فزکس پھنس گئی۔ تو پھر اس کا حل کیسے نکلا؟ 1900 میں میکس پلانک نے ایک بالکل نیا انقلابی قسم کا خیال پیش کیا۔ کیا خیال تھا وہ؟ انہوں نے کہا کہ توانائی جیسے روشنی وہ مسلسل لہروں کی طرح نہیں نکلتی، تو پھر کیسے؟ بلکہ توانائی کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ پیکٹوں میں خارج ہوتی ہیں۔ انہوں نے ان پیکٹوں کو کوانٹا کا نام دیا۔ کوانٹا یعنی توانائی ٹکڑوں میں آتی ہے؟ جی، اور ہر کوانٹم کی توانائی اس کی فریکوینسی پر منحصر ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ فریکوینسی اتنی زیادہ توانائی۔ اس سے وہ لامحدود توانائی والا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ زیادہ فریکوینسی والے کوانٹا کم تعداد میں خارج ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو واقعی بہت بڑا شفٹ تھا۔ لیکن اس کا لپلاس کی جبریت سے کیا تعلق بنا؟ وہ تو مستقبل بتانے والی بات تھی۔ تعلق بہت گہرا تھا، لیکن اسے پوری طرح سمجھنے میں مزید 25-26 سال لگے۔ 1926 میں ورنر ہائزنبرگ آئے۔ ہائسنبرگ، انہوں نے کیا پیش کیا؟ وہی عدم یقین کا اصول؟ جی ہاں، ان کا مشہور عدم یقین کا اصول۔ اس نے جبریت کی بنیادیں ہی ہلا دیں۔ یہ اصول ہے کیا اصل میں، اور یہ اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، اصول یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ذرے کی پوزیشن اور اس کی رفتار، ان دونوں چیزوں کو بے وقت مکمل درستی سے نہیں ناپ سکتے۔ دونوں کو ایک ساتھ نہیں ناپ سکتے؟ کیوں؟ کسی ذرے کو دیکھنے یا اس کی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں اس پر روشنی ڈالنی پڑتی ہے نا؟ ہاں، روشنی یا کوئی اور لہر۔ بالکل۔ اب اگر آپ پوزیشن بہت زیادہ درستی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم طول موج یعنی شارٹ ویو لینتھ والی روشنی استعمال کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور پلانک کے نظریے کے مطابق کم طول موج کا مطلب ہے زیادہ توانائی والا کوانٹم۔ تو زیادہ توانائی والا کوانٹم استعمال کرنا پڑے گا۔ اور یہی بات دلچسپ ہو جاتی ہے، جب وہ زیادہ توانائی والا کوانٹم ذرے سے ٹکرائے گا تو وہ اس کی رفتار کو دھکا دے کر بدل دے گا، غیر متوقع طور پر۔ اچھا، یعنی آپ پوزیشن صحیح معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو رفتار خراب ہو جائے گی۔ بالکل، پوزیشن جتنی زیادہ درستی سے ناپیں گے رفتار اتنی ہی غیر یقینی ہو جائے گی، اور اگر رفتار کو زیادہ درستی سے ناپنے کی کوشش کریں گے تو پوزیشن غیر یقینی ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے ناپنے کے طریقے کی خرابی نہیں ہے؟ نہیں، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ ہمارے آلات کی کوئی کمی نہیں، یہ کائنات کی ایک بنیادی خاصیت ہے۔ فطرت نے ہی ایک حد لگا دی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لاپلاس کا وہ خواب کہ ہم کائنات کی حالت جان کر مستقبل بتا سکتے ہیں، وہ خواب ہی رہا۔ اگر ہم کائنات کی موجودہ حالت کو ہی مکمل درستی سے نہیں جان سکتے تو مستقبل کی بالکل ٹھیک پیش گوئی کیسے کریں گے؟ صحیح، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اسی دریافت نے پھر ہائزنبرگ، شروڈنگر، ڈیراک جیسے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ فزکس کا ایک بالکل نیا نظریہ بنائیں، جسے کوانٹم میکینکس کہتے ہیں۔ بالکل، کوانٹم میکینکس۔ اس میں ذرات کی کوئی ایک متعین پوزیشن یا رفتار نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کوانٹم حالت ہوتی ہے جو کہ تمام ممکنہ پوزیشنز اور رفتاروں کا ایک طرح کا امکاناتی مجموعہ ہے۔
یہ تھیوری آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ نتیجہ کیا ہوگا، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ مختلف ممکنہ نتائج کے امکانات کیا ہیں۔ یعنی سائنس میں اتفاق یا رینڈمنس کا عنصر آ گیا، ایک ناگزیر عنصر، لازمی۔ تبھی آئنسٹائن نے کہا تھا کہ خدا پانسے نہیں کھیلتا، انہیں یہ بے ترتیبی پسند نہیں آئی۔ جی، انہیں یہ خیال بالکل پسند نہیں تھا کہ کائنات کی بنیاد میں رینڈمنس ہو، لیکن زیادہ تر سائنسدانوں نے کوانٹم میکینکس کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تجربات سے بالکل ٹھیک مطابقت رکھتی تھی۔ آج ہماری ساری جدید ٹیکنالوجی، ٹرانزسٹر، کمپیوٹر، لیزر، یہاں تک کہ کیمسٹری اور بایولوجی کی گہری سمجھ، وہ سب کوانٹم میکینکس پر مبنی ہے۔ جی ہاں، ان سب کی بنیاد یہی ہے۔ اچھا، آپ نے لہروں اور ذرات کی بات کی، کوانٹم میکینکس میں ان کا کیا کردار ہے؟ یہ لہر، ذرہ، سنویت کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی عجیب تصور ہے۔ دیکھیں، پلانک نے دکھایا کہ لہریں جیسے روشنی وہ ذرات یعنی کوانٹا کی طرح برتاؤ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہائزنبرگ اور دوسروں نے دکھایا کہ ذرات جیسے الیکٹران وہ لہروں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، مطلب ان کی کوئی ایک پکی جگہ نہیں ہوتی، وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہریں ذرات کی طرح اور ذرات لہروں کی طرح، یہ تو بہت کنفیوزنگ ہے، اس کی کوئی مثال ہے؟ سب سے مشہور مثال وہ 2 شگافوں والا تجربہ ہے، 2 slit ایکسپیریمنٹ۔ ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں۔ اگر آپ روشنی کی لہر کو 2 باریک سوراخوں یا شگافوں سے گزاریں تو دوسری طرف اسکرین پر آپ کو روشن اور تاریک پٹیاں نظر آئیں گی۔ اسے مداخلت یا انٹرفیرنس کہتے ہیں۔ یہ لہروں کی خاصیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ الیکٹران جیسے ذرات کو ایک ایک کر کے بھی ان شگافوں سے گزاریں تو کیا ہوتا ہے؟ تب بھی اسکرین پر وہی لہروں جیسا مداخلت کا نمونہ بنتا ہے، وہی روشن اور تاریک پٹیاں۔ کیا مطلب؟ ایک اکیلا الیکٹران بھی وہ کیسے مداخلت کر سکتا ہے؟ کیا وہ خود سے ٹکرا رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر الیکٹران ایک لہر کی طرح پھیل کر دونوں شگافوں سے گزر رہا ہے اور پھر خود اپنے ساتھ ہی مداخلت کر رہا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ کوانٹم دنیا ایسی ناقابل یقین ہے، اور یہ لہر ذرا سنویت ایٹم کی ساخت سمجھنے میں بھی بہت اہم ثابت ہوئی۔ پرانا ماڈل جو تھا کہ الیکٹران سیاروں کی طرح نیوکلس کے گرد گھومتے ہیں، وہ کام نہیں کرتا تھا؟ نہیں، وہ ناکام ہو گیا تھا۔ نیلز بوہر نے کچھ مخصوص مداروں کا نظریہ دیا، لیکن کوانٹم میکینکس نے اس کی اصل وجہ بتائی۔ وہ کیا؟ کہ الیکٹران کو لہر سمجھا جائے، اور صرف وہی مدار ممکن ہے جن کی لمبائی یعنی سرکمفرنس الیکٹران کی لہر کی طول موج کا پورا عدد ہو۔ اچھا۔ کا جانے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کرتا ہے بے وقت، اور ان تمام راستوں کی لہریں مل کر وہ نتیجہ دیتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ کوانٹم میکینکس چھوٹی، بہت چھوٹی چیزوں کی دنیا پر حکومت کرتی ہے۔ جی ہاں، اصولاً یہ ہمارے ارد گرد کی تقریباً ہر چیز کی وضاحت کر سکتی ہے، سوائے کشش ثقل اور کائنات کی بڑے پیمانے کی ساخت کے۔ وہاں عمومی اضافیت کا راج ہے۔ اور ان دونوں میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمومی اضافیت ایک کلاسیکی نظریہ ہے، اس میں عدم یقین کا اصول شامل نہیں ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمومی اضافیت خود اپنی ناکامی کی پیشگوئی کرتی ہے۔ کیسے؟ بلیک ہولز کے مرکز میں اور بگ بینگ کے آغاز میں جہاں کثافت لامحدود ہو جاتی ہے، ان جگہوں پر کشش ثقل اتنی شدید ہوتی ہے کہ کوانٹم اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی تھیوری نہیں جو ان دونوں یعنی کوانٹم میکینکس اور عمومی اضافیت کو اکٹھا کر سکے۔ تو ابھی تک ایک مکمل تصویر نہیں ہے ہمارے پاس؟ نہیں، ابھی تک نہیں۔ یہی جدید فزکس کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو اس باب سے ہم نے کیا سیکھا؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کائنات اپنی بنیاد میں اتنی جبری یا پریڈکٹیبل نہیں جتنا ہم سمجھتے تھے۔ کوانٹم سطح پر یقین کی جگہ امکانات لے لیتے ہیں، حقیقت خود اسٹیٹسٹیکل پیٹرنز کا ایک معاملہ بن جاتی ہے۔ اور ہاکنگ عدم یقین کے اصول کے ذریعے یہ واضح کرتے ہیں کہ پیشگوئی کی حدیں ہیں، اور یہ حدیں ہمارے آلات کی وجہ سے نہیں بلکہ خود فطرت کی بناوٹ کی وجہ سے ہیں۔ بالکل، اس کے بہت گہرے اثرات ہیں ہماری سوچ پر، سبب اور اثر کے بارے میں، آزاد مرضی کے بارے میں، وقت کی نوعیت کے بارے میں۔ یہ تو واقعی گہری باتیں ہیں۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ یہ کوانٹم تصورات جب شدید کشش ثقل سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔
ہم کائنات کے سب سے پراسرار جسموں میں سے ایک یعنی بلیک ہولز کی دنیا میں قدم رکھیں گے۔ بلیک ہولز، وہ تو بہت دلچسپ ہوگا۔ یقیناً وہ صرف جگہ کو نہیں ہمارے تخیل کو بھی موڑ دیتے ہیں۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ، اگر ہر ذرہ بے وقت کئی راستے اختیار کر سکتا ہے جیسا کہ 2 شغافوں والے تجربے سے لگتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی کئی متوازی شاخیں موجود ہیں اور ہم صرف ان میں سے ایک کا تجربہ کر پاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے بڑی چیزوں پر نظر ڈالی تھی، اضافیت، پھیلتی ہوئی کائنات۔ آج ذرا گہرائی میں اترتے ہیں، بالکل بنیادی سطح پر، کہ یہ کائنات آخر بنی کس چیز سے ہے۔ جی بالکل، اور اس کھوج میں ہمارا ساتھ دے گا اسٹیون ہاکنگ کا باب نمبر 5، ابتدائی ذرات اور فطرت کی قوتیں۔ اچھا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مادے کے بنیادی اجزاء کیا ہیں، جیسے کوارکس، الیکٹرانز، اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو انہیں آپس میں جوڑتی ہیں۔ تو مطلب یہ سمجھنا کہ یہ ننھی منی چیزیں مل کر کیسے ستارے، سیارے اور ہم خود کیسے بن گئے۔ بالکل، سب سے چھوٹی چیزیں کیسے سب سے بڑی چیزوں کی بنیاد بنتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو شروعات کہاں سے کریں؟ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے مٹی، پانی، آگ، ہوا، ہے نا، ارسطو وغیرہ۔ جی ہاں، اور پھر خیال آیا ایٹم کا، کہ مادہ چھوٹے ناقابل تقسیم ذروں سے بنا ہے۔ لیکن وہ خیال بھی پوری طرح صحیح نہیں نکلا، صحیح، کیونکہ پھر پتا چلا کہ ایٹم کے اندر بھی چیزیں ہیں۔ پہلے الیکٹران ملا، پھر ردرفورڈ نے بتایا کہ ایک مرکزہ بھی ہے، جی، اور پھر پتا چلا کہ مرکزے میں پروٹون ہے، اور کچھ عرصے بعد نیوٹران بھی دریافت ہو گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ پروٹون اور نیوٹرون بھی وہ بھی بنیادی نہیں ہے۔ نہیں، یہی تو سب سے دلچسپ موڑ تھا۔ مرے گیل مین نے نظریہ پیش کیا کہ پروٹون اور نیوٹران خود بھی اور چھوٹے ذرات سے بنے ہیں، جنہیں انہوں نے کوارکس کا نام دیا۔ کوارکس، یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ انہوں نے جیمز جوائس کی ایک کتاب سے لیا تھا، ایک عجیب سی لائن سے۔ خیر، اہم بات یہ ہے کہ عام مادہ بنانے کے لیے 2 قسم کے کوارکس کافی ہیں، اپ اور ڈاؤن۔ اچھا، اپ اور ڈاؤن، تو پروٹون اور نیوٹرون ان سے کیسے بنتے ہیں؟ پروٹون میں 2 اپ اور 1 ڈاؤن کوارک ہوتا ہے، اور نیوٹرون میں 2 ڈاؤن اور 1 اپ۔ سمجھ گیا۔ اور ان ذرات کی ایک اور خاصیت کا ذکر ہوتا ہے، اسپن۔ کیا یہ لٹو کی طرح گھومتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ والا گھومنا نہیں ہے، یہ کوانٹم میکینکس کی ایک اندرونی خاصیت ہے۔ یوں سمجھیں کہ ذرہ مختلف سمتوں سے کیسا دکھتا ہے، اور جو مادے کے ذرات ہیں نا، جیسے الیکٹران اور کوارکس، ان کی اسپن ہوتی ہے ہاف۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں پورا ایک چکر نہیں، بلکہ 2 چکر، 720 ڈگری۔ جی ہاں، 2 پورے چکر گھمانے پر وہ ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شروع میں تھے۔ عجیب بات ہے نا؟ واقعی بہت عجیب ہے۔ اسپن کا کوئی عملی نتیجہ بھی ہے؟ بہت اہم۔ اسپن ہاف والے ذرات ایک اصول پر عمل کرتے ہیں، پاؤلی ایکسکلوژن پرنسپل۔ آسان لفظوں میں 2 ایک جیسے الیکٹران ایک ہی جگہ پر ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ اچھا، اسی اصول کی وجہ سے مادہ ٹھوس ہے، ورنہ ایٹم ایک دوسرے میں دھنس جاتے۔ تو یہ اصول مادے کو ساخت دیتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، ایک اور چیز، ضد مادہ، اینٹی میٹر، یہ کیا بلا ہے؟ یہ بھی بالکل حقیقی ہے۔ پال ڈیراک نے 1928 میں اس کی پیشنگوئی کی تھی، جب وہ کوانٹم میکینکس اور آئنسٹائن کی خصوصی اضافیت کو ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نظریہ یہ ہے کہ ہر ذرے کا ایک ضد ذرہ یعنی اینٹی پارٹیکل ہوتا ہے، جیسے الیکٹران کا اینٹی الیکٹران جسے پوزیٹرون کہتے ہیں۔ اور اگر یہ مل جائیں تو دونوں فنا ہو جاتے ہیں اور خالص توانائی یعنی فوٹون پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کائنات میں تو زیادہ تر مادہ ہی نظر آتا ہے، ضد مادہ تو آئیں دکھتا۔ یہی تو بڑا سوال ہے کہ شروع میں اگر برابر بنے تھے تو آج یہ فرق کیوں ہے؟ اس پر ہم آخر میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس مادے کے بنیادی ذرات ہو گئے، کوارکس اور الیکٹرانز، جو لیپٹون کہلاتے ہیں۔ اب انہیں جوڑنے والی قوتیں کون سی ہیں؟ جی، بنیادی طور پر 4 قوتیں مانی جاتی ہیں، اور یہ قوتیں کام کیسے کرتی ہیں؟ ذرات آپس میں کچھ خاص قوت بردار یا پیغام رساں ذرات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے ڈاکیہ خط لاتا ہے؟ کچھ ویسا ہی سمجھ لیں۔ تو پہلی قوت ہے کشش ثقل، سب سے جانی پہچانی لیکن سب سے کمزور بھی۔
یہ ہر چیز پر اثر کرتی ہے. اس کا پیغام رساں گریویٹون مانا جاتا ہے، اگرچہ ابھی ملا نہیں. ٹھیک ہے. دوسری ہے برق مغناطیسیت. یہ چارج والے ذرات پر اثر کرتی ہے. ایٹموں کو جوڑ کر مولیکیول بنانا، روشنی، بجلی، مغناطیسیت، یہ سب اسی کے کرشمے ہے. اس کا پیغام رساں ہے فوٹون یعنی روشنی کا ذرہ. ٹھیک. اور باقی دو نیوکلیئر قوتیں؟ جی، ایک ہے مضبوط نیوکلیائی قوت. یہ کوارکس کو پروٹون اور نیوٹرون کے اندر باندھ کر رکھتی ہے، اور پروٹون اور نیوٹرون کو ایٹم کے مرکزے میں. یہ بہت طاقتور ہے، مگر اس کی پہنچ بہت ہی کم ہے. اس کا پیغام رساں ہے گلوون جیسے گوند؟ بالکل. اور چوتھی ہے کمزور نیوکلیائی قوت. یہ کچھ قسم کی تابکاری ریڈیو ایکٹیویٹی کے لیے ذمہ دار ہے. یہ بھی بہت کم فاصلے پر کام کرتی ہے. تو یہ 4 قوتیں ہو گئیں. کیا یہ ہمیشہ سے الگ الگ تھیں؟ نہیں، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ شاید نہیں. عبدالسلام اور سٹیون ونبرگ نے دکھایا کہ بہت زیادہ توانائی پر کمزور نیوکلیائی قوت اور برقناطیسیت ایک ہی قوت بن جاتی ہیں، جسے الیکٹرو ویک قوت کہتے ہیں. او واہ! تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ چاروں قوتیں اصل میں ایک ہی سپر فورس کے مختلف پہلوؤں ہوں؟ یہی تو سب سے بڑا خواب ہے فزکس کا. ایک عظیم متحدہ نظریہ یا گرینڈ یونیفائیڈ تھیوری GUT بنانا جو مضبوط، کمزور اور الیکٹرو ویک قوت کو یکجا کر دے. اور کیا ایسے نظریات موجود ہیں؟ جی ہاں، کئی ہیں. یہ نظریات کچھ دلچسپ پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں، مثلا یہ کہ پروٹون بھی شاید ہمیشہ قائم نہیں رہتے، اربوں خربوں سال میں ایک آدھ ٹوٹ سکتا ہے. کیا پروٹون بھی ٹوٹ سکتا ہے؟ نظریاتی طور پر ممکن ہے. ابھی تک تجرباتی طور پر ایسا دیکھا نہیں گیا، لیکن کوششیں جاری ہیں. اور کیا یہ GUTs وہ مادے اور ضد مادے والی پہیلی سلجھا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک ممکنہ وضاحت پیش کرتے ہیں. ان نظریات کے مطابق کائنات کے بالکل شروع میں جب بے انتہا گرمی اور توانائی تھی تو کبیات کے قوانین مادے اور ضد مادے کے لیے بالکل ایک جیسے نہیں تھے. ایک ہلکا سا فرق تھا. اچھا، کیسا فرق؟ اسے CP وائلیشن کہتے ہیں. مطلب کچھ تعاملات، انٹریکشنز مادے کے لیے جس طرح ہوتے تھے، ضد مادے کے لیے تھوڑے مختلف تھے. اور جب کائنات ٹھنڈی ہوئی اور پھیلی تو اس معمولی سے فرق کی وجہ سے ضد مادہ فنا ہو گیا، لیکن تھوڑا سا اضافی مادہ بچ گیا. اور اسی بچے ہوئے مادے سے آج سب کچھ بنا ہے؟ جی ہاں. تو ایک طرح سے ہمارا وجود ہی شاید ان عظیم متحدہ نظریات کا بائے واسطہ ثبوت ہے. کمال ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ساری کائنات اپنی تمام تر وسعت اور پیچیدگی کے باوجود شاید چند بنیادی ذرات، 4 قوتوں اور کچھ بہت ہی بنیادی اور خوبصورت اصولوں پر چل رہی ہے. بالکل. اسٹیفن ہاکنگ ہمیں یہی دکھاتے ہیں کہ فطرت کی گہرائی میں ایک حیرت انگیز سادگی اور توازن چھپا ہوا ہے، اور ان قوانین کو سمجھ کر ہم شاید ہر شے کے نظریے کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہ سفر تو واقعی بہت دلچسپ ہے. اگلی بار ہم کہاں جائیں گے؟ اگلی بار ہم انہی ذرات اور قوتوں کو کائنات کی سب سے پراسرار جگہوں میں دیکھیں گے، بلیک ہولز میں، جہاں ہمارے جانے پہچانے قوانین شاید کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سننے میں ہی سنسنی خیز لگ رہا ہے. اور آج کے لیے ایک آخری خیال چھوڑ جاتی ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات کے آغاز میں وہ جو ذرا سی بے قاعدگی تھی، وہ CP وائلیشن، اگر وہ نہ ہوتی تو آج نہ ہم ہوتے، نہ یہ کہکشائیں، کچھ بھی نہ ہوتا، بس خالی توانائی ہوتی. اس پر سوچئے گا. تو آج ہم باب 6 کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ باب کائنات کے سب سے پراسرار اور طاقتور مظاہر میں سے ایک پر ہے، یعنی بلیک ہولز. جی بالکل. پہلے ہم نے مادے کے بنیادی اجزاء اور قوتوں کو سمجھا. اب ہم کائنات کی ان انتہاؤں کی طرف آ گئے ہیں جہاں کشش ثقل کا راج ہے. ہاں، اور یہ باب بتاتا ہے کہ ستارے کیسے، مطلب جب ان کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ہی کشش کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور ان ناقابل یقین حد تک کثیف چیزوں میں بدل جاتے ہیں. اتنے کثیف کہ روشنی بھی نہیں نکل سکتی. یہ خیال تو پرانا تھا، ہے نا؟ لیکن یہ نام بلیک ہول. جی، یہ نام جان ویلر نے 1969 میں دیا. اس سے پہلے اسے کولیپسڈ سٹار یا کچھ اور کہا جاتا تھا. اچھا. اور اہم بات یہ ہے، دیکھیں کہ بلیک ہول صرف تباہی نہیں لاتے. یہ باب ان کی تخلیق، ایونٹ ہورائزن یعنی واقعاتی افق کا تصور، واقعاتی افق
जी, और खास तौर पर ये कि ब्लैक होल्स हमें वक्त, खला और क्वांटम थ्योरी के बारे में क्या सिखा सकते हैं, उस पर रोशनी डालता है। ये समझना कि रोशनी भी कशिश शकल से मुतासिर होती है, ये तो आइंस्टाइन के बाद ही मुमकिन हुआ, ठीक है? बिल्कुल। जनरल रिलेटिविटी ने ही इसकी बुनियाद रखी कि भारी अजसाम रोशनी का रास्ता मोड़ सकते हैं, और ब्लैक होल तो मतलब इंतहा है। तो ये बाब एक तरह से नजरियाती फिजिक्स से हटकर हकीकी कायनाती अजायबात की तरफ ले जाता है, जहां हमारे जाने पहचाने कवानीन शायद जवाब दे जाते हैं। जी, जहाँ कशिश शकल गालिब आ जाती है। सितारे आम तौर पर तो न्यूक्लियर फ्यूजन की गर्मी से अपनी कशिश को बैलेंस रखते हैं। हाँ, लेकिन जब ईंधन खत्म, फिर क्या होता है? यहीं पर चंद्रशेखर की दरियाफ्त बहुत अहम है। सन 1928 में उन्होंने हिसाब लगाया था अच्छा, जी, कि अगर ईंधन खत्म होने वाले सितारे की कमियत यानी मैस हमारे सूरज से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा हो, जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, 1.5 गुना। ओके, तो वो सितारा अपनी ही कशिश शकल के सामने टिक नहीं पाएगा, वो लाजिमन सिकुड़ेगा। तो इसका मतलब है कि कम कमियत वाले सितारे ब्लैक होल नहीं बनते? नहीं, वो उमूमन व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन सितारे बन जाते हैं। वहाँ मादा इतना दब जाता है कि इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन एक दूसरे को मजीद दबने नहीं देते। वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से? बिल्कुल, वो एक क्वांटम मैकेनिकल रुकावट है। लेकिन अगर सितारा बहुत बड़ा हो तो कशिश शकल इस रुकावट पर भी गालिब आ जाती है और सितारा बस सिकुड़ता ही चला जाता है। और फिर ओपेनहाइमर ने दिखाया 1939 में कि इस सिकुड़ाव के दौरान सितारे की सतह पर कशिश इतनी बढ़ जाती कि रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। जी, रोशनी के रास्ते अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। यही वो सरहद है, वो नाकाबिले वापसी हद, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल का आगाज, ये तस्वुर ही मतलब दिमाग घुमा देता है। वाकई, और यहाँ वक्त का मामला भी बहुत दिलचस्प है। वक्त का? वो कैसे? देखें, इवेंट होराइजन से बाहर अगर कोई देख रहा हो तो उसे सितारे से आती रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम और सुर्ख होती दिखेगी, जैसे वक्त स्लो हो रहा हो, यहाँ तक कि वो बिल्कुल गायब हो जाए। अच्छा, लेकिन अगर कोई खला नवर्द खुद उसमें गिर रहा हो तो उसे शायद इवेंट होराइजन पार करने का पता भी न चले, हालांकि उसके लिए वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से गुजर रहा होगा। कमाल है, ये जनरल रिलेटिविटी का ही एक नतीजा है। जी हाँ, ये वक्त और कशिश शकल के ताल्लुक का एक हैरान कुन पहलू है। तो बाब 6 ये वाजे करता है कि ब्लैक होल्स जो कभी सिर्फ एक थ्योरी समझे जाते थे, आज जदीद फल्की तबियात के लिए और हॉकिंग के अपने काम के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ चीजें निगलते नहीं है, बल्कि कायनात के राज भी खोलते हैं। यहाँ वो ब्लैक होल का कोई बॉल नहीं होता वाला नजरिया भी आता है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब एक सितारा ब्लैक होल में बदलता है तो उसकी सारी पेचीदा तारीख, उसकी बनावट, सब कुछ मिट जाता है। आखिर में ब्लैक होल की पहचान सिर्फ 3 चीजों से होती है: उसकी कमियत, उसका चार्ज और उसकी गर्दिश यानी स्पिन। बस ये 3 चीजें? जी, गोया कायनात इतनी पेचीदा शय को हैरान कुन हद तक सादा बना देती है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल भी उठता है। वो क्या? मालूमात का। वो मालूमात जो ब्लैक होल में गिरती हैं, उनका क्या बनता है? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं? ये जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी के दरमियान एक बड़ा टकराव है। और जैसा कि बाद के अब्वाब में आएगा, शायद ये मुकम्मल तौर पर ब्लैक भी नहीं है, ये ताबकारी भी खारिज कर सकते हैं। बिल्कुल, और बिला आखिर शायद बुखारात बनकर उड़ भी जाए, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये खुद एक इनकलाबी ख्याल है। सही। तो आगे बढ़ते हुए हम इन तजादात और पहेलियों में मजीद गहराई में जाएंगे जो ब्लैक होल्स हमारे सामने रखते हैं। जैसे वो कायनाती सेंसरशिप वाली बात कि क्या सिंगुलैरिटी हमेशा इवेंट होराइजन के पीछे छुपी रहती है? जी बिल्कुल, क्या कुदरत हमें लामुतनाही कसाफत को बराए रास्त देखने से रोकती है? ये वो सवालात हैं जो हमें इल्म की बिल्कुल सरहदों तक ले जाते हैं। ये वाकई गौर तलब बात है कि ऐसा लगता है कायनात अपने सबसे बड़े राज इसी तारीकी में छुपाती है। शायद इसी तारीकी को समझने में ही रोशनी छुपी हो। पिछली बार हमने बात की थी कि ब्लैक होल्स तो जैसे कायनाती कैद खाने हैं, ऐसी जगहें जहाँ से रोशनी भी नहीं निकल सकती। जी बिल्कुल, यही आम तस्वुर था। लेकिन आज हम बाप साथ ब्लैक होल्स इतने काले नहीं पर बात कर रहे हैं। यहाँ स्टीवन हॉकिंग ने
सब कुछ बदल दिया। हाँ, उन्होंने एक बिल्कुल ही नई इनकलाबी बात की थी। हॉकिंग रेडिएशन का नजरिया है ना? जी, कि ब्लैक होल्स क्वांटम असरात की वजह से असल में तवानाई खारिज कर सकते हैं, वो बिल्कुल काले नहीं हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा कायम नहीं रहते। बिल्कुल, वो कमियत खो सकते हैं, मतलब वो सिकुड़ सकते हैं और आखिरकार शायद खत्म भी हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात थी। और इसने यूं समझे कि कशिश सकल यानी जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को पहली बार जोड़ा। जी, यही उसकी सबसे बड़ी अहमियत थी। फिजिक्स के दो बड़े सुतून एक साथ। तो ये ख्याल आया कैसे? सुना है 1970 में उन्होंने इवेंट होराइजन पर कुछ काम किया था। हाँ, उन्होंने दरियाफ्त किया कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वो बाउंड्री जहाँ से फरार मुमकिन नहीं, उसका रकबा कभी कम नहीं हो सकता। सिर्फ बढ़ सकता है जब कोई चीज अंदर गिरे। जी, और ये बढ़ने वाली खासियत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून में एंट्रोपी की होती है। एंट्रोपी यानी बेतरतीबी, वो भी हमेशा बढ़ती है। सही। तो ये मुशाबहत बहुत गहरी थी। फिर जैकब बैकनस्टाइन ने कहा कि शायद ये रकबा ही एंट्रोपी है। जी, उन्होंने ये तजवीज पेश की, लेकिन इससे एक मसला खड़ा हो गया। मसला? क्या मसला? मसला ये कि अगर एंट्रोपी है तो दर्जा हरारत भी होना चाहिए, और अगर दर्जा हरारत है तो जिस्म तापकारी खारिज करता है। ओ, लेकिन ब्लैक होल से तो कुछ निकल नहीं सकता, ये तो उसकी तारीफ के ही खिलाफ था। बिल्कुल, हॉकिंग खुद भी शुरू में इस ख्याल के सख्त मुखालिफ थे। उन्हें ये बात बिल्कुल गलत लगी। तो फिर वो खुद इस नतीजे पर कैसे पहुँचे? इसमें सोवियत साइंसदानों जेल्कोविच और स्टारोबिन्स्की के काम का भी किरदार था। और फिर हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स को इस्तेमाल किया। क्वांटम मैकेनिक्स? यहाँ कैसे? देखें, क्वांटम नजरिए के मुताबिक खाली खला भी बिल्कुल खाली नहीं होता। उसमें मजाजी जर्रात के जोड़े, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, हर वक्त बनते और फना होते रहते हैं। अच्छा, ये तो अजीब बात है। जी, तो हॉकिंग ने हिसाब लगाया कि इवेंट होराइजन के बिल्कुल करीब क्या होता है। वहाँ इन मजाजी जोड़ों में से एक मनफी तवानाई वाला जर्रा ब्लैक होल में गिर सकता है, और दूसरा उसका साथी मुस्बत तवानाई वाला वो बाहर खला में फरार हो सकता है। तो जो जर्रा अंदर गिरा उसकी मनफी तवानाई ब्लैक होल की कुल तवानाई कम कर देगी, यानी उसकी कमियत कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। और जो बाहर निकला वो हमें ऐसा लगेगा जैसे ब्लैक होल से तापकारी खारिज हो रही है। कमाल है, यानी तापकारी ब्लैक होल के अंदर से नहीं बल्कि उसके किनारे से क्वांटम असरात की वजह से आ रही है। एन मुताबिक। और उसने वो बैकनस्टाइन वाला एंट्रोपी का मसला भी हल कर दिया। जो तापकारी निकल रही है उसकी अपनी एंट्रोपी होती है जो ब्लैक होल के रुतबे में कमी की तलाफी कर देती है। वाह, तो ये एक तरह से थर्मोडायनामिक्स का कानून भी बच गया। जी बिल्कुल। तो फिर E=mc² के मुताबिक तवानाई के इखराज का मतलब है कमियत में कमी, यानी ब्लैक होल वक्त के साथ छोटा होता जाएगा। हाँ, और जैसे जैसे वो छोटा होता है उसका दर्जा हरारत बढ़ता जाता है और तापकारी का इखराज और तेज हो जाता है। तेज होता जाता है। तो आखिर में क्या होगा? नजरिया ये है कि आखिर में जब वो बहुत छोटा और बहुत गर्म हो जाएगा तो वो एक बड़े धमाके के साथ मुकम्मल तौर पर बुखारात बनकर उड़ जाएगा। एक धमाका? ब्लैक होल का खात्मा एक धमाके से? जी, ये एक इम्कान है। लेकिन जो बड़े ब्लैक होल्स हैं जो सूरज से लाखों गुना बड़े हैं, उनका क्या? उनका दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है, मुतलक सिफर से बस जरा सा ऊपर। उन्हें इस तरह बुखारात बनने में कायनात की मौजूदा उम्र से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा वक्त लगेगा। तो वो तो अमली तौर पर हमेशा रहेंगे। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या छोटे ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं? एक दिलचस्प ख्याल है कदीमी ब्लैक होल्स का। ये वो छोटे ब्लैक होल हो सकते हैं जो शायद कायनात के बिल्कुल शुरू में बिग बैंग के फौरन बाद बने हों। अगर वो बने थे तो अब कहाँ हैं? अगर उनकी कमियत मुनासिब थी, जैसे किसी पहाड़ जितनी, तो वो शायद अब अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में होंगे और शदीद एक्सरे और गामा रेज खारिज कर रहे होंगे। क्या हमने ऐसी कोई गामा रेज देखी हैं? हमने कायनाती पस मंजर में गामा रेज देखी तो है, लेकिन उनका मनबा यकीनी तौर पर ये कदीमी ब्लैक होल्स नहीं। मुशाहिदात ने उनकी तादाद पर एक हद लगा दी है, मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। तो अभी तक कोई सबूत नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं। तलाश जारी है। तो मजमूई तौर पर हॉकिंग रेडिएशन की सबसे बड़ी बात क्या है?
इसकी तारीखी अहमियत ये है कि ये जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाने वाली पहली ठोस पेशगोई थी। इसने ये तस्वुर बदल दिया कि कशिश सुकल का तसादुम बिल्कुल हतमी होता है। और वो जो बात थी कि ब्लैक होल में गिरने वाली मालूमात का क्या होता है, क्या वो हमेशा के लिए जाया हो जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। हॉकिंग रेडिएशन से लगता है कि शायद तवानाई कीमियत वापस आ जाती है ताबकारी की शक्ल में। तो अगर कोई खिलाबाज गिर जाए तो इसकी तवानाई वापस आ जाएगी, लेकिन वो खुद नहीं, एक अजीब किस्म की रिसाइकलिंग। हाँ, कुछ ऐसा ही। अगरचे वो मालूमात किस शक्ल में वापस आती हैं, ये अब भी बहस का मौजू है, और ये दरियाफ्त सिंगुलैरिटीज के मसले को समझने में भी मदद दे सकती है। सिंगुलैरिटीज, जहाँ फिजिक्स के खवानीन जवाब दे जाते हैं। जी, शायद क्वांटम असरात उन लामहदूदियतों को खत्म करते हों। तो खुलासा ये हुआ कि इस बाब ने ब्लैक होल्स को एक नई रोशनी में दिखाया। वो बिल्कुल काले और मुर्दा नहीं है। बिल्कुल, वो चमक सकते हैं, सुकड़ सकते हैं और शायद मर भी सकते हैं। वो मुतहर्रिक चीजें हैं। और इन्होंने फिजिक्स की बुनियादों को हिला दिया, क्वांटम थियोरी और कशिश सकल के मिलाप की तरफ इशारा किया। जी हाँ, ये आज भी फिजिक्स के मुकद्दस अहदाफ में से एक है। तो ब्लैक होल्स अब पहले से भी ज्यादा पुरस्कार और दिलचस्प लग रहे हैं। शायद इनमें खिला, वक्त और मालूमात के राज छुपे हों। यकीनन। अच्छा, तो ब्लैक होल्स की इस दुनिया से निकलकर अगली बार हम एक और बुनियादी सवाल की तरफ जाएंगे। कायनात कहाँ से आई और ये ऐसी क्यों है जैसी है? ये वाकई बड़े सवालात है। तो अगली गुफ्तगू में हम कायनात की इब्तिदा और उसकी साख्त के राजों में मजीद गहराई तक जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज हम स्टीफन हॉकिंग की किताब के एक बहुत ही अहम बाब 8 पर बात कर रहे हैं, कायनात की इब्तिदा और इंजाम। जी, पिछली बार हम ब्लैक होल्स और क्वांटम असरात की गहराई में गए थे। बिल्कुल, और अब सवाल ये है कि ये सब कुछ, ये पूरी कायनात, ये आई कहाँ से और इसका मुस्तकबिल क्या है? यही सबसे बड़े सवालात हैं। ये बाब बिग बैंग थियोरी से शुरू तो होता है, लेकिन फौरन ही इसकी जो हुदूद है उन्हें चैलेंज करता है। जी हाँ। मसलन, क्या वक्त हमेशा से था या वक्त की भी कोई इब्तिदा थी? और यहीं पर हॉकिंग हमें कुछ बहुत ही गैर मामूली तस्वुरात से मिलवाते हैं, जैसे ख्याली वक्त। हाँ, और बगैर सरहद की तजवीज, यानी नो बाउंड्री प्रपोजल। बिल्कुल। यहाँ आकर ना बात सिर्फ फिजिक्स की नहीं रहती, ये सीधा फलसफे के मैदान में चली जाती है। सही। क्या ऐसा मुमकिन है कि कायनात को किसी रिवायती खालिक की जरूरत ही ना हो? क्या सिर्फ कुदरती कवानीन, जो लॉ ऑफ नेचर है, वही काफी है वजूद की वजाहत के लिए? देखिए, ये बहुत गहरे सवालात हैं जिन्हें हॉकिंग ने उठाया है। आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी थी, वो तो यही बताती थी कि स्पेस टाइम बिग बैंग पर शुरू हुआ और शायद बिग क्रंच या किसी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में खत्म हो जाए। मतलब एक वाज़े आगाज और एक मुमकिन अंजाम। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने क्वांटम असरात को शामिल किया, खास तौर पर वो जो ब्लैक होल्स का बुखारात बनकर उड़ जाना है ना, हॉकिंग रेडिएशन। जी, तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स उन बिल्कुल इब्तिदाई और आखिरी नुकात को, यानी सिंगुलैरिटीज को भी खत्म कर सकती है? ओह, वो पॉइंट्स जहाँ हमारे फिजिक्स के कवानीन जवाब दे जाते हैं। बिल्कुल वही, जहाँ सब कुछ लामहदूद हो जाता है। तो क्या क्वांटम थ्योरी इन्हें हमवार कर सकती है? हॉकिंग ने वो वेटिकन वाली कॉन्फ्रेंस का वाकया भी बताया था ना? जी, बड़ा दिलचस्प वाकया है। उन्हें मशवरा दिया गया था कि बिग बैंग पर तहकीक ना करें, क्योंकि वो तो खल्कियत का लम्हा है। यानी एक तरह से मना किया गया, आप कह सकते हैं। लेकिन हॉकिंग का ख्याल तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक ऐसी कायनात का तस्वुर पेश कर रहे थे जो महदूद तो हो, फाइनाइट हो, मगर उसकी कोई सरहद ना हो, कोई किनारा ना हो। मतलब कोई इब्तिदा या इंतहा का लम्हा ही ना हो। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे चलते हैं। गर्म बिग बैंग मॉडल क्या कहता है? जी, जो स्टैंडर्ड मॉडल है, गर्म बिग बैंग मॉडल, वो कायनात की तारीख बताता है कि ये एक इंतहाई गर्म कसीफ हालत से शुरू हुई, फिर फैली और ठंडी होती गई। और इसी दौरान अनासिर बने? हाँ, पहले सेकंड के बाद तो ये नाकाबिले तस्वुर हद तक गर्म थी। फिर कोई 100 सेकंड बाद हीलियम जैसे हल्के अनासिर बनना शुरू हुए। और इस मॉडल का सबसे बड़ा सबूत? वो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB है, जिसकी पेशगोई गेमाऊ, अल्फर और बैथे ने की थी। बिल्कुल, और जिसे बाद में दरियाफ्त भी किया गया। और फिर अरबों साल लगे
गैलेक्सियां बनने में, सितारे, सैयारे। जी हाँ, और हमारे सूरज जैसे सितारे तो आप कह लें दूसरी नस्ल के सितारे हैं। ये पहले सितारों के सुपरनोवा धमाकों से जो मलबा बिखरा था ना, उससे बने? जी, जिसमें भारी अनासिर शामिल थे जो फिर जमीन जैसे सियारों और बिलाखिर जिंदगी की बुनियाद बने। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि एक गर्म बिग बैंग मॉडल में कुछ मसाइल भी थे। हाँ, कुछ बहुत बड़े सवालात थे जिनके जवाब ये मॉडल नहीं दे पाता था। मसलन कायनात इतनी ज्यादा यकसा क्यों है? आप जिस तरफ भी देखें बड़े पैमाने पर टेम्परेचर तकरीबन एक जैसा है, ये कैसे हुआ? अच्छा, और दूसरा, उसके फैलने की रफ्तार यानी एक्सपेंशन रेट, वो इतना नाजुक तौर पर मुतवाजन क्यों है? जरा सा तेज होता तो कहकशाएं ना बनती, जरा सा आहिस्ता होता तो ये कब की वापस उकड़ चुकी होती। ओह, और तीसरा, वो जो इब्तिदाई बहुत ही मामूली सी कसाफत में कमी बेशी थी, वो फ्लक्चुएशंस जिन्होंने बाद में कहकशाओं और क्लस्टर्स को जन्म दिया, वो आई कहां से? क्लासिकी थ्योरी सिंगुलैरिटी पर आकर इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती। तो इन मसाइल का हल फिर कैसे निकला? यहाँ पर एक और आइडिया सामने आया, इन्फ्लेशनरी मॉडल, जिसे एलन गुथ ने पेश किया। इन्फ्लेशन मतलब बहुत तेजी से फैलना? बिल्कुल, उनका ख्याल था कि कायनात बनने के फौरन बाद एक लम्हे के बहुत ही छोटे हिस्से में उसने एक नाकाबिले यकीन हद तक तेज रफ्तार फैलाव का दौर गुजारा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छा, और इससे क्या फायदा हुआ? इससे वो यकसानियत वाला मसला हल हो सकता है, क्योंकि एक छोटा सा हमवार हिस्सा फैलकर हमारी पूरी काबिले मुशाहिदा कायनात बन गई, और ये फैलाव की शरह वाले मसले की भी वजाहत करता है। गुथ ने तो मजाकन ये भी कहा कि कायनात हतमी मुफ्त लंच है, यानी सारी तवानाई और मादा उस फैलाव से ही आ गया। वाह, बाद में आंद्रे लिंदे और दूसरों ने इस मॉडल को और बेहतर बनाया, जिसे क्योस्टिक इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन क्या ये मॉडल सब कुछ बता देता है? नहीं, ये भी ये बुनियादी सवाल हल नहीं करता कि कायनात की इब्तिदाई हालत वैसी ही क्यों थी जैसी इन्फ्लेशन के लिए जरूरी थी, कोई और क्यों नहीं। तो यहाँ फिर क्वांटम का किरदार आता है? बिल्कुल। अब बात आती है क्वांटम ग्रेविटी की, यानी जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाने की। यहाँ हॉकिंग और जिम हार्टेल ने रिचर्ड फाइनमैन का सम ओवर हिस्ट्रीज का तस्वुर इस्तेमाल किया। वो क्या है? वो ये कि क्वांटम लेवल पर कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं लेता, बल्कि तमाम मुमकिन रास्ते बेवक्त लेता है। और साथ में उन्होंने ख्याली वक्त का तस्वुर इस्तेमाल किया। ख्याली वक्त, इमेजिनरी टाइम, ये क्या चीज है? ये वक्त की एक रियाजियाती किस्म है, आम वक्त की तरह नहीं, लेकिन ये हिसाब किताब में सिंगुलैरिटीज से बचने में मदद देता है। अच्छा, तो इन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या नतीजा निकाला? उन्होंने नो बाउंड्री प्रपोजल पेश की। नो बाउंड्री प्रपोजल। ओके, उसका मतलब क्या हुआ आसान लफ्जों में? इसका मतलब ये है कि अगर हम कायनात की तारीख को आम वक्त के बजाय ख्याली वक्त में देखें तो स्पेस टाइम महदूद तो हो सकता है, फाइनाइट, लेकिन उसका कोई किनारा, कोई सरहद, कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी। कोई किनारा नहीं होगा? मिसाल? बिल्कुल, जमीन की सतह की तरह। देखें, जमीन की सतह महदूद है, इसका रकबा है, लेकिन क्या उसका कोई किनारा है, कोई एज? नहीं, आप चलते जाएं तो वापस वहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह इस तजवीज के मुताबिक स्पेस टाइम का कोई आगाज या इख्तिताम का नुक्ता नहीं, कोई सिंगुलैरिटी नहीं जहां कवानीन टूट जाएं। तो अगर कोई इब्तिदाई नहीं, तो फिर ये सवाल कि बिग बैंग से पहले क्या था या कायनात कब शुरू हुई, ये सवाल ही बेमाना हो जाता है। बिल्कुल, ये ऐसे ही है जैसे पूछना कि शुमाली कुत्ब से शुमाल में क्या है, सवाल ही गलत है। यानी कायनात मुकम्मल तौर पर खुद कफील है, सेल्फ कंटेन्ड। जी, वो बस है, इट जस्ट इज। इसे ना किसी ने बनाया, ना ये तबाह होगी, कम से कम इस नजरिए के मुताबिक। कवानीन फितरत ही काफी हैं। और क्या ये थ्योरी मुशाहिदात से मुताबिकत रखती है? हाँ, ये तजवीज कायनात के बड़े पैमाने पर यकसा फैलाव की वजाहत करती है और उन इब्तिदाई क्वांटम फ्लक्चुएशंस की भी पेशगोई करती है जिनसे बाद में कहकशाएं बनी और जिन्हें COB जैसे सैटेलाइट्स ने माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देखा भी है। ये तो वाकई जहन को झंझोड़ देने वाला ख्याल है। अगर कायनात खुद कफील है बगैर किसी आगाज या सरहद के, तो फिर खालिक का तस्वर। देखिए, यहीं पर फिजिक्स फलसफे से मिलती है। अगर ये तजवीज दुरुस्त है
तो रिवायती मानों में एक ऐसे खालिक की जरूरत बाकी नहीं रहती जो वक्त से बाहर खड़े होकर कायनात को शुरू करे। कायनात खुद ही अपनी मुकम्मल वजाहत बन जाती है। तो खुलासा करें अगर इस बाप का, हॉकिंग ने हमें वक्त की बिल्कुल हुदूद तक पहुंचा दिया, आगाज तक भी और मुमकिना इंजाम तक भी। जी, और उन्होंने बिग बैंग से पहले क्या था वाले सवाल पर ही सवाल उठा दिया। बिल्कुल, जिससे वक्त, सबबियत यानी कॉजेलिटी और तख्लीक के बारे में हमारे जो बुनियादी तसव्वुरात थे वो चैलेंज हो गए। और कायनात का मुस्तकबिल, चाहे वो हमेशा फैलती रहे या वापस सुखड़े, वो भी उन्हीं बुनियादी कानूनों से जुड़ा हुआ है। अगली बार हम एक और बहुत ही दिलचस्प और शायद रोजमर्रा जिंदगी से ज्यादा करीब के सवाल पर बात करेंगे। वक्त का तीर, यानी वक्त हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं जाता। ये भी एक बड़ा राज है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने का एक नुक्ता, अगर कायनात वाकई खुद कफील और बगैर सरहद के है जैसा हॉकिंग तजवीज करते हैं, तो फिर हम इंसान जो कायनात में मानी या मकसद तलाश करते हैं, क्या ये हमारी अपनी ख्वाहिश है जो हम एक ऐसी हकीकत पर डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसका शायद अपना कोई अंदरूनी मकसद या माना है ही नहीं। गहरी बात है, सोचने वाली बात है। हम सब रोजमर्रा जिंदगी में एक चीज का तजुर्बा करते हैं जो शायद सबसे बड़ा मुअम्मा है, वक्त। ये हमेशा आगे ही क्यों चलता है? जी, माजी से मुस्तकबिल की तरफ। हाँ, कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि टूटा हुआ कप खुद ही जुड़ जाए और मेज पर वापस आ जाए? बिल्कुल, ये एक बुनियादी सवाल है। स्टीवन हॉकिंग ने अपनी किताब के बाब 9 में, जिसे वक्त का तीर या द एरो ऑफ टाइम कहा गया है, इसी बुनियादी सवाल को समझने की कोशिश की है। जी हाँ। देखिए, वक्त के बारे में हमारे ख्यालात तो बदले हैं, न्यूटन से आइंस्टाइन तक, लेकिन ये सवाल वहीं का वहीं है। खासतौर पर इसलिए कि तबीयत के जो बुनियादी कवानीन है वो तो वक्त में आगे और पीछे दोनों तरफ काम करते हैं। बिल्कुल, तो फिर ये हमारी दुनिया में ये एक तरफा बहाव क्यों है? यही वो नुक्ता है जहां हॉकिंग बात को खोलते हैं। वो वक्त के इस यकतरफा बहाव को समझने के लिए वो कहते हैं कि 3 मुख्तलिफ तीर हैं। 3 तीर? अच्छा। जी, पहला है थर्मोडायनामिक तीर। ये वो सिमत है जिसमें बेतरतीबी यानी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी यानी बिगाड़, बेतरतीबी। बिल्कुल, इसे समझने के लिए ना एक जिक्सॉ पजल की मिसाल लें। ठीक है। देखिए, मुकम्मल तस्वीर वाली हालत तो सिर्फ एक ही हो सकती है ना? हाँ। लेकिन हजारों लाखों हालतें ऐसी हैं जिनमें टुकड़े बिखरे हुए हैं यानी बेतरतीब है। तो कुदरती तौर पर चीजें ज्यादा मुमकिना हालतों की तरफ जाती हैं, यानी बेतरतीब हालतों की तरफ। अच्छा, तो वक्त के साथ चीजें ज्यादा बेतरतीब होती जाती हैं, जैसे कमरा खुद ब खुद साफ नहीं होता, फैल जाता है। बिल्कुल वही बात। ये तो हुआ पहला तीर। ठीक है, और बाकी 2? दूसरा तीर है नफ्सियाती तीर। ये वक्त गुजरने का हमारा अपना अंदरूनी एहसास है। जैसे हम माजी को याद रखते हैं। जी, हम माजी को याद रखते हैं, मुस्तकबिल को नहीं। हम उम्र के साथ बड़े होते हैं, जवान नहीं होते। यहाँ हॉकिंग एक बहुत ही, आप कहें कि दिलचस्प नुक्ता पेश करते हैं। वो हमारे माजी को याद रखने के अमल को एंट्रोपी के बढ़ने से जोड़ते हैं। क्या मतलब? याददाश्त और एंट्रोपी का क्या ताल्लुक? देखिए, जब हमारा दिमाग कोई याद महफूज करता है तो वो एक मुनज्जम हालत बनाता है ना? हाँ, याद एक मुनज्जम चीज है। लेकिन इस अमल में तवानाई खर्च होती है, हरारत पैदा होती है, और ये हरारत कायनात की मजमूई बेतरतीबी में यानी एंट्रोपी में इजाफा करती है। ओह, यानी हमारा वक्त को महसूस करना, याद रखना, ये भी कायनात में एंट्रोपी बढ़ने का ही नतीजा है। एक तरह से हाँ, हमारा नफ्सियाती तजुर्बा भी एंट्रोपी के बढ़ने की समझ से जुड़ा हुआ है। ये तो वाकई हैरान कुन बात है। अच्छा, और तीसरा तीर? तीसरा तीर कायनाती तीर है। ये बहुत सादा है। ये वो समत है जिसमें कायनात फैल रही है, यानी बिग बैंग के बाद से कायनात का मुसलसल फैलना। जी बिल्कुल। तो अब असल गहरा सवाल ये बनता है कि ये तीनों तीर, थर्मोडायनामिक, नफ्सियाती और कायनाती, ये एक ही समत में क्यों इशारा कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? हाँ, ये वाकई बड़ा सवाल है। क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? हॉकिंग इसकी क्या वजाहत देते हैं? हॉकिंग उसका जवाब अपनी मशहूर कोई सरहद नहीं, नो बाउंड्री कंडीशन तजवीज में देते हैं।
कोई सरहद नहीं, ये क्या चीज है? ये थोड़ा पेचीदा तस्वुर है, लेकिन आसान लफ्जों में बुनियादी ख्याल ये है कि कायनात का आगाज किसी एक नुक्ते, किसी सिंगुलैरिटी से नहीं हुआ जहां कवानीन जवाब दे जाएं, अच्छा, तो फिर कैसे? बल्कि ये वक्त और जगह में एक हमवार, एक बंद सतह की तरह शुरू हुई। जैसे जमीन की सतह है, उसका कोई किनारा नहीं है ना, बस एक कुतुब शमाली जैसा एक हमवार नुक्ता आगाज है। इस तजवीज के मुताबिक कायनात अपनी बिल्कुल इब्तिदाई हालत में इंतहाई मुनज्जम और हमवार थी, गो के क्वांटम उतार चढ़ाव की वजह से बिल्कुल एक जैसी नहीं थी, थोड़ा फर्क था। तो अगर कायनात एक इंतहाई मुनज्जम हालत से शुरू हुई? ओह, मैं समझा। चूंकि आगाज बहुत मुनज्जम था, तो वक्त गुजरने के साथ बेतरतीबी का बढ़ना तो लाजमी था। बिल्कुल। इससे थर्मोडायनामिक तीर की वजाहत हो गई। जी हाँ, एक इंतहाई मुनज्जम आगाज लाजमी तौर पर वक्त के साथ बढ़ती हुई बेतरतीबी की तरफ ले जाता है, और जैसा हमने अभी बात की, हमारा नफ्सियाती तीर भी उसी थर्मोडायनामिक तीर की पैरवी करता है, क्योंकि याददाश्त वगैरह एंट्रोपी बढ़ाते हैं। सही। अब रहा कायनाती तीर, यानी कायनात के फैलाव से ताल्लुक। यहाँ हॉकिंग कमजोर एंथ्रोपिक उसूल, वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का जिक्र करते हैं। एंथ्रोपिक उसूल, ये क्या है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि हम चीजें ऐसी देखते हैं क्योंकि अगर वो ऐसी ना होती तो हम उन्हें देखने के लिए मौजूद ही ना होते? हाँ, ये एतराज आम है, लेकिन इसे यूं समझें कि ये कोई मुकम्मल वजाहत नहीं, बल्कि एक इंतखाबी असर है, एक सिलेक्शन इफेक्ट है। अच्छा, मतलब ये कि हमारी जैसी ज़हीन जिंदगी जो तवानाई इस्तेमाल करती है, मालूमात पर अमल करती है, वो लाजमी तौर पर एंट्रोपी पैदा करती है। उसे एक मजबूत थर्मोडायनामिक तीर की जरूरत होती है। ठीक है। और ये हालात हॉकिंग के मुताबिक सिर्फ कायनात के फैलते हुए मरहले में ही मुमकिन है। सिर्फ ऐसी कायनात में ही हम जैसे मुशाहिदा करने वाले वजूद में आ सकते हैं जो ये सवाल पूछ सकें। तो फैलती हुई कायनात ही जिंदगी के लिए साजगार है, जो एंट्रोपी बढ़ाती है, और इसीलिए हम उसे फैलता हुआ देखते हैं। जी, एक दिलचस्प बात ये भी है कि हॉकिंग ने पहले ये सोचा था कि शायद अगर कायनात फैलने के बजाय सिकुड़ना शुरू कर दे तो वक्त का तीर उल्टा हो जाएगा, एंट्रोपी कम होने लगेगी। ओह, वक्त उल्टा चलने लगेगा। हाँ, ये उनका इब्तिदाई ख्याल था, लेकिन बाद में उसी कोई सरहद नहीं वाली शर्त पर मजीद काम करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, अगर कायनात सिकुड़े भी तब भी एंट्रोपी बढ़ती ही रहेगी, वक्त का तीर अपनी सिमत नहीं बदलेगा। अच्छा, तो ये तो और भी पक्का हो गया कि वक्त आगे ही चलेगा। तो खुलासा ये हुआ कि वक्त का ये जो आगे की तरफ बहाव है, ये कोई बुनियादी कानून नहीं है। नहीं, ये कोई बुनियादी कानून नहीं, बल्कि ये कायनात की बहुत ही इब्तिदाई इंतहाई मुनज्जम हालत का नतीजा है, जिसकी वजाहत हॉकिंग की कोई सरहद नहीं तजवीज करती है। जी। और इस मुनज्जम आगाज की वजह से एंट्रोपी वक्त के साथ बढ़ती है। ये हुआ थर्मोडायनामिक तीर। बिल्कुल। और हमारा वक्त का नफ्सियाती तजुर्बा, हमारी याददाश्त, वो भी उसी से जोड़ा है। जी हाँ। और कायनात का फैलाव यानी कायनाती तीर, वो गोया एक स्टेज फराहम करता है जिस पर ये सब मुमकिन हो पाता है और जिसमें हमारी जैसी जिंदगी पनप सकती है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। इन तीनों तीरों का एक ही सिमत में होना महज इत्तेफाक नहीं है, ये कायनात की इब्तिदा की गहरी खुसूसियात और हम जैसे मुशाहिदा करने वालों के वजूद के लिए लाजमी शराइत का नतीजा है। हॉकिंग ने बड़ी खूबसूरती से वक्त के इस रोजमर्रा के तजुर्बे को कायनात की बड़ी कहानी से, उसके आगाज से, उसकी हालत से जोड़ दिया है। ये वाकई गहरी बात है और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या कायनात की हर चीज जानी जा सकती है? क्या हमारी समझ की कोई हद है? जी, ये एक अहम सवाल है। क्या इल्म की कोई इंतहा है? शायद ये वो सवाल है जिस पर हम अगली बार बात करेंगे। क्या सब कुछ जानना मुमकिन है? आज हम स्टीफन हॉकिंग की किताब के 10वें बाब पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, पिछली बार हमने वक्त की सिमत पर बात की थी कि ये एक ही तरफ क्यों चलता है। बिल्कुल, और अब हॉकिंग एक और उससे भी ज्यादा चौंका देने वाला सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम वक्त में सफर कर सकते हैं? हाँ, बाब 10 का उन्वान ही है वर्म होल्स और टाइम ट्रेवल। तो क्या कायनात में ज़मानो मकान में शॉर्टकट्स हो सकते हैं? यानी वर्म होल्स। और क्या ये हमें माजी या मुस्तकबिल में ले जा सकते हैं? यही सवाल है।
देखिए, ये बाब आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के नजरिए पर मबनी है। अच्छा, तो वर्म होल्स कम से कम थ्योरी में ऐसी सुरंगें हैं जो खला में या शायद वक्त में भी दो बहुत दूर के मुकामात को जोड़ सकती हैं। वाह। लेकिन हॉकिंग सिर्फ आप कह लें कयास आराई नहीं कर रहे, वो बहुत संजीदगी से उन तभी शराइत को देखते हैं। यानी फिजिक्स क्या कहती है इस बारे में? जी, और क्वांटम असरात क्या होंगे और वो तजादात, पैराडॉक्सेस जो इस सारे आइडिया को बहुत बहुत पेचीदा बना देते हैं। तो फिर चलें इस दिलचस्प मौजू को जरा खोलते हैं। वक्त क्या है? क्या ये बस एक सीधी लकीर है जिस पर हम चल रहे हैं, या इसमें मोड़, शाखें, सुरंगें, ये सब मुमकिन है? हाँ, H.G. वेल्स ने तो बहुत पहले सोचा था इस बारे में। साइंस फिक्शन में तो ये भरा पड़ा है। लेकिन फिजिक्स में इसका पहला आप कह लें संजीदा इशारा 1949 में आया, कर्ट गोडल ने, जो एक मशहूर मंतिकदान थे। ओह, गोडल। जी, उन्होंने आइंस्टाइन की इक्वेशंस का एक हल निकाला, एक ऐसी कायनात जो घूम रही थी। घूमती भी कायनात? हाँ, और उसमें थ्योरेटिकली माजी में सफर मुमकिन था। ये एक धमाका खेज बात थी कि जनरल रिलेटिविटी खुद ऐसी अजीब चीजों की इजाजत देती है। लेकिन हमारी कायनात तो ऐसी नहीं घूम रही है ना? नहीं, हमारे मुशाहिदात तो यही बताते हैं। तो ये वाला रास्ता तो शायद नहीं। दूसरे आइडियाज भी है, जैसे घूमते हुए ब्लैक होल का अंदरूनी हिस्सा, या वो कायनाती तारे, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। और एक वो रास्ता जो साइंस फिक्शन में बहुत दिखाते हैं, रोशनी से तेज सफर। हाँ, FTL, फास्टर देन लाइट। रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई चीज रोशनी से तेज चली जाए तो वो वक्त में पीछे जा सकती है। बिल्कुल, मौसर तरीके से वो माजी में पहुंच जाएगी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है, ठीक है? हाँ, सबसे बड़ा मसला तवानाई का है। किसी भी चीज को जिसका मास हो, उसे रोशनी की रफ्तार तक पहुंचाने के लिए लामहदूद तवानाई चाहिए, जो कि नामुमकिन है। अमली तौर पर नामुमकिन है। तो ये रास्ता तो बंद ही समझे। यहीं से फिर वर्म होल ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। अच्छा, तो वर्महोल्स पर वापस आते हैं। ये असल में आइंस्टाइन और नाथन रोजन का 1935 का एक आइडिया था, ब्रिजेस का। यानी पुल? जी, जमानो मकाम में शॉर्टकट्स, जो शायद अरबों नूरी साल का फासला चंद कदमों में तय करवा दे, या शायद वक्त में भी। शॉर्टकट्स तो हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें खोला रखना ये कैसे मुमकिन होगा? कोई मसला तो होगा। बिल्कुल मसला है। उन्हें खुला रखने के लिए या वक्त में सफर करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जमानो मकान को एक खास अंदाज में मोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए मनफी तवानाई किसाफत, नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी, या मनफी खम वाला मादा। मनफी तवानाई, ये क्या चीज है? आम मादा तो मुस्बत तवानाई रखता है। जी, सितारे, सयारे, हम सब मुस्बत तवानाई की साफत रखते हैं, और हम जमानो मकान को एक खास तरीके से मोड़ते हैं। मनफी तवानाई वाला मादा वो उसे उल्टा मोड़ेगा। ये बहुत ही आप कह लें एग्जॉटिक या गैर मामूली चीज है। तो क्या ऐसी कोई चीज वाकई हो सकती है? मनफी तवानाई, ये तो सुनने में ही अजीब है। क्लासिक फिजिक्स में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन क्वांटम थ्योरी में उसकी झलक मिलती है। क्वांटम में? कैसे? कैसिमिर इफेक्ट है। लेबोरेटरी में ये दिखाया जा चुका है। अच्छा, वो क्या है? जब आप दो धाती प्लेटों को बहुत ही करीब रखते हैं, बिल्कुल करीब, तो उनके बीच की खाली जगह में जो मजाजी जर्रात होते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स, जो हर वक्त बनते बिगड़ते रहते, वही, इनकी कुछ मखसूस इकसाम वहाँ महदूद हो जाती हैं। बाहर के मुकाबले में अंदर कम जर्रात होते हैं। इस फर्क की वजह से प्लेटों के बीच एक कशिश पैदा होती है और उस इलाके में तवानाई की कसाफत मनफी हो जाती है। ओह, वाकई? हाँ, ये बहुत कम होती है, लेकिन ये साबित करती है कि मनफी तवानाई कसाफत फिजिक्स के कवानीन के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो क्वांटम दुनिया में ये मुमकिन है। मान लिया कि हमने मनफी तवानाई से वर्महोल बना भी लिया, वक्त में सफर मुमकिन हो गया, तो फिर वो सवाल? हाँ, वो बड़े सवाल। अगर मुस्तकबिल में टाइम मशीन बन गई तो वहाँ से लोग अब तक क्यों नहीं आए? बिल्कुल। और वो दादा वाला पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, कि अगर कोई माजी में जाकर अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से पहले ही खत्म कर दे, तो वो खुद कैसे पैदा होगा? ये तो बड़ा चक्कर है। इसके दो मुमकिन जवाब सोचे गए हैं। एक है मुस्तकिल तारीखों का नजरिया, कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज, यानी वो पत्थर पर लकीर है। अच्छा।
दूसरा है मुतबादिल तारीखों का मफरूजा, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज। उसके मुताबिक जब आप माजी में जाते हैं तो आप एक नई मुतवाजी टाइमलाइन, एक अलग तारीख बना देते हैं। यानी असल तारीख वैसी ही रहती है। जी, आप अपनी अलग तारीख में चले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रिचर्ड फाइनमैन का जो सम ओवर हिस्ट्रीज का नजरिया है क्वांटम मैकेनिक्स में, हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। वो पहले वाले नजरिए की तरफ इशारा करता है, यानी कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज की तरफ। ये भी बहुत दिलचस्प है कि हॉकिंग ये भी बताते हैं कि क्वांटम लेवल पर, जैसे वो हॉकिंग रेडिएशन है, ब्लैक होल से जर्रात का निकलना, हाँ, वहाँ वर्चुअल पार्टिकल्स का रवैया ऐसा लगता है जैसे वो वक्त में पीछे जा रहे हों। बिल्कुल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, खुर्दबीनी सतह पर ऐसे इशारे मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बड़े पैमाने पर मुमकिन है, मतलब एक इंसान या एक खलाई जहाज के लिए? यही असल सवाल है। यहाँ हॉकिंग का अपना एक नजरिया आता है, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर। तारीख के तहफ्फुज का कयास। जी, ये कहता है कि शायद फिजिक्स के कवानीन में ही कोई ऐसा हिफाजती निजाम है जो बड़ी चीजों को माजी में जाने से रोकता है। कैसे? नजरिया ये है कि जैसे ही आप ज़मानो मकान को इतना मोड़ेंगे कि माजी का सफर मुमकिन होने लगे, तो वो वर्चुअल पार्टिकल्स जो हमने जिक्र किए, कैज़िमिर इफेक्ट वाले, हाँ, वो शायद हकीकी बन जाएंगे और इतनी ज्यादा तवानाई पैदा करेंगे कि वो या तो वर्म होल को ही तबाह कर देंगे या ज़मानो मकान को वापस इस तरह बदल देंगे कि सफर नामुमकिन हो जाए। गोया फिजिक्स खुद अपनी तारीख को बचा रही है। कुछ ऐसा ही लगता है, एक तरह की साजिश। तो अगर खुलासा करें, वर्म होल्स, टाइम मशीन्स, ये सब रियाजियाती तौर पर शायद मुमकिन हो कागज पर। हाँ, मसावातें शायद इजाजत देती हों, लेकिन उन्हें बनाने के लिए हमें वो अजीबो गरीब मनफी तवानाई वाला मादा चाहिए, बेतहाशा तवानाई चाहिए। और फिर वो सबबियत, कॉजालिटी का मसला, वजह और असर का ताल्लुक टूटने का खतरा। दादा पैराडॉक्स वगैरह। जी, और जैसा कि हॉकिंग याद दिलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि फिजिक्स के कवानीन किसी चीज से मना नहीं करते, जरूरी नहीं कि कुदरत हमें वो करने की इजाजत भी दे। ये बहुत अहम नुक्ता है। बिल्कुल, ये सारी बहस हमें एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। क्या इन सब चीजों की कशिश शुक्ल, क्वांटम मैकेनिक्स, ज़मानो मकान, इन सब की कोई एक वाहिद मुत्तहिदा वजाहत है? यानी एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। जी हाँ, क्या कोई ऐसा नजरिया है जो इन सबको एक साथ बयान कर सके? और ये सोचने वाली बात रह जाती है कि अगर वाकई क्वांटम सतह पर वक्त में पीछे जाने की हल्की सी झलक मुमकिन है, तो वो क्या चीज है जो इसे बड़े पैमाने पर होने से रोकती है? क्या ये क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन वाकई हर हाल में काम करती है या इसमें भी कोई लूप होल हो सकता है? ये सवाल अभी बाकी है। आज हम स्टीफन हॉकिंग की किताब के 11वें बाब में बात कर रहे हैं, तबीयत का इत्तेहाद। ये शायद साइंस की सबसे बड़ी तलाश है कि कायनात के सारे कवानीन को एक ही नजरिए में कैसे सुमोया जाए। जी बिल्कुल। हॉकिंग इस बाब में आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत, जो बड़ी चीजों का कहकशाओं वगैरह को देखता है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो एटम की दुनिया पर लागू होता है, उनको जोड़ने की जो कोशिश है उसका जिक्र करते हैं। सही। तो बुनियादी सवाल यही है कि क्या ये चारों कुव्वतें, कशिश सकल, बर्क नातीसियत और 2 न्यूक्लियाई कुव्वतें, क्या ये सब एक ही आप कहें खूबसूरत फॉर्मूले से बयान हो सकती हैं? बिल्कुल, और ये कोई नया ख्वाब नहीं है। आइंस्टाइन ने तो अपनी जिंदगी के आखिरी तकरीबन 30 साल इसी में लगा दिए। 30 साल? जी, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। एक तो उस वक्त तक देखें न्यूक्लियर कुव्वतों का इतना इल्म नहीं था, और दूसरी बात वो खुद क्वांटम मैकेनिक्स पर पूरी तरह यकीन नहीं रखते थे। अच्छा, हालांकि उन्होंने खुद इसकी बुनियाद रखी थी। जी, सितम ज़रीफी यही है। और तारीख में पहले भी ऐसे लम्हे आए हैं जब लगा कि बस मंजिल करीब है। वो 1928 में मैक्स बोर्न वाली बात। हाँ, उन्होंने कहा था तबैयात 6 महीने में खत्म हो जाएगी। इतने पुरजोश थे वो लोग। जी, जिराक के इलेक्ट्रॉन वाली मसावात के बाद। मगर फिर न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ, नई कुव्वतें सामने आईं, तो पता चला कि कहानी अभी बाकी है। तो असल रुकावट क्या है इन दोनों नजरियात में, यानी इजाफियत और क्वांटम में? देखें, बुनियादी फर्क है। अमूमी इजाफियत वो एक क्लासिकी नजरिया है, हमवार स्पेस टाइम। ठीक। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि हर चीज छोटे छोटे पैकेट्स में है, क्वांटा में, और उसमें वो असूल गैर यकीनी भी है। यानी आप हर चीज एक साथ नहीं जान सकते। बिल्कुल। तो जब इनको मिलाने की कोशिश करते हैं तो अजीब मसले खड़े हो जाते हैं। अजीब मसले? जैसे कि?
ایک بڑا مسئلہ ہے مجازی ذرات کا. کوانٹم تھیوری کہتی ہے کہ خالی خلا بھی خالی نہیں، اس میں ہر وقت ذرات بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں. اچھا، تھیوری کے مطابق ان کی توانائی اور کمیت وہ لامحدود ہونی چاہیے. لامحدود مطلب انفینٹ؟ جی، اور اگر ایسا ہو تو ان کی کشش ثقل کائنات کو آپ سمجھیں ایک نقطے میں سکیڑ دے گی، جو ظاہر نہیں ہوتا. اوہ، تو یہ لامحدودیت، یہ انفینٹیز، یہ بڑا مسئلہ ہے. کیا یہ دوسرے نظریات میں نہیں آتے؟ آتی ہیں، مگر وہاں ایک تکنیک ہے، رینارملائزیشن، وہ کام کر جاتی ہے. رینارملائزیشن یہ کیا ہے؟ یہ یوں سمجھیں ایک ریاضیاتی چال ہے، ایک لامحدودیت کو دوسری سے کاٹ دینا. تھوڑا مشکوک طریقہ ہے، لیکن بجلی، مغناطیسیت، نیوکلیر قوتوں کے لیے یہ کمال کا کام کرتا ہے. مگر کشش ثقل کے لیے نہیں؟ نہیں، عمومی اضافیت کے ساتھ یہ ناکام ہو جاتا ہے. وہاں لامحدودیتیں باقی رہتی ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ کوششیں رک گئی؟ نہیں، سائنسدان اتنی جلدی ہار نہیں مانتے. 70 کی دہائی میں سپر گریوٹی کا آئیڈیا آیا. سپر گریوٹی؟ جی، خیال یہ تھا کہ ہر معلوم ذرے کا ایک سپر پارٹنر ہے، تو گریویٹون یعنی کشش ثقل والے ذرے کو دوسروں کے ساتھ ملا کر سپر پارٹیکل بنایا جائے تاکہ مختلف مجازی ذرات کی لامحدودیتیں ایک دوسرے کو کینسل کر دیں. اچھا، دلچسپ خیال ہے. تھا تو دلچسپ، مگر یہ تھیوری بہت ہی پیچیدہ نکلی، اور جو ذرات اس سے نکلنے چاہیے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آئے، تو یہ زیادہ چلی نہیں. تو سپر گریوٹی بھی نہیں چلی، پھر اگلا قدم کیا تھا؟ کوئی نیا آئیڈیا؟ بالکل، اور یہ واقعی ایک آپ کہیں انقلابی آئیڈیا تھا. 1984 کے آس پاس اسٹرنگ تھیوری سامنے آئی. اسٹرنگ تھیوری، یہ نام تو بہت سنا ہے. جی، اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کائنات کی جو اصل بنیاد ہے وہ نقطے جیسے ذرات نہیں، بلکہ ننھے منھے مرتعش دھاگے ہیں، اسٹرنگز. دھاگے؟ سچ میں؟ جی، تھیوری یہی کہتی ہے. یہ کھلے بھی ہو سکتے ہیں، بند لوپ کی شکل میں بھی، اور جو مختلف ذرات ہم دیکھتے ہیں وہ ان دھاگوں کی مختلف وائبریشنز ہیں. واہ، یعنی جیسے گٹار کے تار سے مختلف سر نکلتے ہیں؟ بالکل ویسی ہی مثال ہے. اور ذرات کا ملنا یا ٹوٹنا وہ ان دھاگوں کا جڑنا اور ٹوٹنا ہے. یہ تو بالکل ہی الگ تصویر ہے کائنات کی. ہے نا؟ دلچسپ بات یہ کہ یہ تھیوری پہلے 60 کی دہائی میں بنی تھی، مضبوط نیوکلیائی قوت کے لیے، مگر کامیاب نہیں ہوئی. پھر 1974 میں شرک اور شوارز نے دکھایا کہ اگر ان دھاگوں کا تناؤ مطلب ٹینشن بہت زیادہ ہو تو یہ کشش ثقل کو بیان کر سکتی ہے. اچھا، اور 1984 میں یہ دوبارہ مقبول ہوئی کیونکہ سپر گریوٹی سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور شوارز اور گرین نے دکھایا کہ اسٹرنگ تھیوری کچھ بنیادی مسائل حل کر سکتی ہے، جن میں لامحدودیت کا مسئلہ بھی شامل تھا. لیکن اس اسٹرنگ تھیوری کے اپنے بھی تو مسائل ہیں نا، وہ اضافی جہتوں والی بات، ڈائمینشنز. ہاں، یہ اس کا سب سے عجیب پہلو ہے. تھیوری ریاضیاتی طور پر تبھی صحیح بیٹھتی ہے جب کائنات میں 10 یا کچھ ورژن میں 26 جہتیں ہوں. 10 یا 26؟ لیکن ہم تو صرف 4 ہی دیکھتے ہیں، 3 جگہ کی اور 1 وقت کی. بالکل، تو تھیوری کہتی ہے کہ باقی جہتیں اتنی چھوٹی جگہ میں ایسے لپٹے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے. جیسے دور سے ایک تنکا یا پائپ سیدھا لگتا ہے مگر قریب سے اس کی گولائی نظر آتی ہے. تو یہ اضافی جہتیں ہیں کہاں اور ہم انہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کا ایک ممکنہ جواب جو تھوڑا فلسفیانہ ہے وہ اینتھروپک پرنسپل ہے. اینتھروپک پرنسپل؟ جی، یعنی کائنات ایسی ہے کیونکہ اگر مختلف ہوتی تو ہم یہاں یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے. ایسا لگتا ہے کہ زندگی جیسی پیچیدہ چیزیں صرف 3 جمع 1 جہتوں میں ہی بن سکتی ہیں. اچھا، کیسے؟ دیکھیے، 2 مکانی جہتوں میں آپ کا نظام انہضام آپ کو 2 حصوں میں کاٹ دے گا، اور 3 سے زیادہ مکانی جہتوں میں سیاروں کے مدار اور ایٹم وہ مستحکم نہیں رہ پاتے. یہ تو بڑی گہری بات ہے. تو ہاکنگ آخر میں کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ حتمی نظریہ ملے گا؟ ہاکنگ 3 امکانات بتاتے ہیں. پہلا، ایک مکمل واحد متحدہ نظریہ موجود ہے جس سے ہم آخر کار دریافت کر لیں گے. ٹھیک. دوسرا، نظریات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. ہم بہتر سے بہتر نظریے بناتے جائیں گے مگر کوئی ایک حتمی نظریہ نہیں ہوگا. اور تیسرا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں. کائنات بنیادی طور پر بے ترتیب ہے. ہاکنگ خود پہلے امکان کی طرف زیادہ مائل ہیں. ان کا خیال ہے کہ ایک حد ہے
जिसे प्लैंक तवानाई कहते हैं, उस पर पहुंचकर शायद मजीद बुनियादी साख्त की गुंजाइश ही ना रहे। तो ये अजीम ख्वाब, ये खूबसूरत तलाश अब भी जारी है? अभी मंजिल नहीं आई? बिल्कुल। किशिश सुकुल को क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरी कुव्वतों से पूरी तरह जोड़ना ये अभी बाकी है। ये तलाश जारी है, और ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एक तरह से फलसफा भी है कि क्या वाकई कायनात इतनी सादा, इतनी खूबसूरत है कि एक ही उसूल से चलती हो। और अगले यानी आखिरी बाब में हॉकिंग इन्हीं सवालों पर आएंगे कि इस सब का मतलब क्या है, हम ये मुत्तहिदा नजरिया क्यों ढूंढ रहे हैं, और अगर ये मिल गया तो? जी, इसके क्या मायने होंगे हमारे लिए, कायनात में हमारी जगह के लिए। चले इस पर अगली बार बात करेंगे। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सामीन के सोचने के लिए। फर्ज करें हम कायनात का वो हतमी कानून जान भी लें, लेकिन क्वांटम गैर यकीनी की वजह से या निजाम की पेचीदगी की वजह से हम मुस्तकबिल की हर चीज की पेशगोई फिर भी ना कर सकें, तो क्या उस दरियाफ्त से हमारे वजूद को समझने के अंदाज में कोई वाकई बुनियादी फर्क पड़ेगा? तो आज हम स्टीफन हॉकिंग की मशहूर किताब वक्त की मुख्तसर तारीख के बिल्कुल आखिरी बाब पर बात कर रहे हैं। ये इख्तितामिया है? जी हाँ। और इस बाब में हॉकिंग तबैयात के मसावात से थोड़ा आगे निकलकर कायनात को समझने की जो इंसानी ख्वाहिश है ना, उस पर गौर करते हैं। बिल्कुल। वो बुनियादी सवाल पूछते हैं, जैसे कायनात असल में है क्या, हम कहाँ हैं इसमें, ये सब आया कहाँ से, और ये ऐसा ही क्यों है। मतलब गुफ्तगू अब तबैयात से ज्यादा फलसफे की तरफ जा रही है। सही। और वो शुरू करते हैं पुराने जमाने के तसव्वुरात से। जैसे वो कहानी है ना कि जमीन कछुओं के ऊपर टिकी हुई है, उसका मुवाजना वो आज की सुपर स्ट्रिंग थ्योरी जैसी पेचीदा चीजों से करते हैं। हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे सोच बदली। पहले लोग समझते थे कि हर चीज वो मनमौदी रूहों के ज़ेरे असर है। बिल्कुल। फिर इंसान ने बाकायदगियों, कवानीन को तलाश करना शुरू किया, खास तौर पर आसमान में, जैसे सैयारों की हरकत, वो तो बड़ी काबिले पेशन गोई है। और इसी तरतीब की तलाश से फिर 19वीं सदी में वो लपलास का नजरिया आया, साइंसी जबरियत का। जी, साइंसी जबरियत, यानी अगर आपको कायनात की हालत एक लम्हे में पता हो तो आप कवानीन से उसका पूरा मुस्तकबिल बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन लैपलास ने ये छोड़ दिया था कि कवानीन कौन चुनता है और शुरू की हालत क्या थी, वो काम खुदा का है। हाँ, मगर फिर ये तस्वीर हम जानते हैं अधूरी निकली। क्वांटम मैकेनिक्स आ गई और उसका वो उसूल गैर यकीनी। ओ हाँ, यानी आप एक ही वक्त में किसी जर्रे की सही जगह और रफ्तार दोनों एक साथ नहीं जान सकते। बिल्कुल। क्वांटम नजरियात तो ज़रात को लहरों की तरह देखते हैं, एक इम्कानाती लहर। नजरियात तो जबरी हैं, वो लहर के इर्तिका का कानून बताते हैं। अच्छा, गड़बड़ तब होती है जब हम उस लहर को अपनी पुरानी जर्रात वाली पोजीशन और रफ्तार के तस्वर पर फिट करने की कोशिश करते हैं। शायद ये हमारी समझ की गलती हो। तो अब साइंस का मकसद ऐसे कवानीन ढूंढना है जो इस गैर यकीनी की हुदूद में रहते हुए काम करें। जी हाँ, लेकिन वो सवाल तो वहीं का वहीं है। ये कवानीन और शुरू की हालत आई कहाँ से, ये इंतखाब कैसे हुआ? हॉकिंग फिर कशिश सुकल यानी ग्रेविटी की अहमियत बताते हैं कि वो कायनात की बड़ी साख्त को कंट्रोल करती है। दुरुस्त। और आइंस्टाइन का उमूमी नजरिया इजाफियत कहता है कि माजी में एक लामहदूद कसाफत की हालत यानी बिग बैंग जरूर हुई होगी, वो वक्त का आगाज था। और मुस्तकबिल में अगर कायनात सिकड़ी तो बिग क्रंच या ब्लैक होल्स के अंदर की वो अकायतें, सिंगुलैरिटीज, वो वक्त का इख्तिताम। मुमकिन तौर पर। और इन जगहों पर यानी अकायतों पर हमारे सारे जाने पहचाने कवानीन काम करना छोड़ देते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या यहाँ खालिक के लिए कोई किरदार निकलता है, इंतखाब की गुंजाइश? बात यहाँ दिलचस्प हो जाती है। बहुत ज्यादा। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स को उमूमी नजरिया इजाफियत से मिलाने की कोशिश की जाती है ना, तो एक और बिल्कुल नया इम्कान सामने आता है। वो क्या? वो ये कि ज़मान और मकान यानी स्पेस टाइम मिलकर शायद एक महदूद चार जिहती खला बनाते हो, जिसकी कोई सरहद, कोई किनारा, कोई अकायत ना हो। जमीन की सतह की तरह, लेकिन ज्यादा जिहतों में। बिल्कुल वैसी ही मिसाल है। ये कोई सरहद नहीं वाली तजवीज है, और ये कायनात की कई खुसूसियात, जैसे इसका बड़े पैमाने पर यकसा होना या वक्त का तीर,
इन सब की वजाहत कर सकती है। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो कायनात मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो गई, उसे शुरू करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जी, यही इसका सबसे बड़ा नुक्ता है। अगर ये कोई सरहद नहीं तजवीज ठीक है, तो फिर खुदा के लिए या खालिक के लिए इब्तिदाई हालात चुनने की आजादी नहीं बचती। शायद सिर्फ कवानीन का इंतखाब बाकी रह जाता है। यानी हो सकता है सिर्फ एक ही मुमकिना मुत्तहिदा नजरिया हो, जैसे वो हेटेरोटिक स्ट्रिंग थ्योरी का जिक्र करते हैं। हाँ, या कोई और उम्मीदवार, एक ऐसा नजरिया जो खुद अपनी जगह मुकम्मल हो और ऐसी पेचीदा चीजों जैसे हम इंसान के वजूद की इजाजत दे जो इन कानूनों को समझने की कोशिश कर सकें। लेकिन फिर हॉकिंग हमें वापस उन गहरे सवालों पर ले आते हैं। इन मसावातों में जान कौन डालता है? कायनात में वजूद में आने की जहमत ही क्यों की? बिल्कुल। क्या ये मुत्तहिदा नजरिया खुद इतना ताकतवर है कि वो अपने वजूद की वजह बन जाए, या इसे फिर भी खालिक की जरूरत है? और अगर खालिक है तो उसे किसने बनाया? ये तो वही पुराना सवाल है। हॉकिंग कहते हैं कि साइंसदान उमूमन क्या पर तवज्जो देते हैं, जबकि फलसफी क्यों पूछते हैं, लेकिन वो साइंस की रफ्तार के साथ चल नहीं पाए। तो हॉकिंग की उम्मीद क्या है आखिर में? उनकी उम्मीद ये है कि अगर हम कभी वो एक मुकम्मल नजरिया दरियाफ्त कर लें तो वो इतना सादा और जामिया हो कि सब इसे समझ सकें। आम लोग, फलसफी, साइंसदान सब मिलकर इस बहस में हिस्सा ले सकें कि हम और ये कायनात आखिर क्यों मौजूद हैं। तो इस सब का हासिल क्या निकला? एक मुकम्मल नजरिए की दरियाफ्त क्या सिर्फ तबीयत का खात्मा है? हॉकिंग के नजदीक ये शायद उससे कहीं बढ़कर है। ये खुदा के जहन को जानने जैसा हो सकता है, तबीयत से फलसफे की गहराइयों में एक छलांग। वाह। और एक आखिरी बात सोचने के लिए, अगर एक मुत्तहिदा नजरिया ही कायनात की वजह है, तो क्या उससे कायनात का जो सहर है वो कम हो जाता है, या ये जानकर कि हकीकत की एक अंदरूनी मंतिक है, ये सहर और बढ़ जाता है? ये तजस्सुस तो बहरहाल जारी रहेगा। बिल्कुल। इस गहरी गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं। वैसे इससे पहले कि हम खत्म करें, एक छोटी सी गुजारिश। जी। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम उर्दू में इस तरह का फलसफियाना और साइंसी मवाद लाते रहें, तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, आपकी मदद बहुत अहम है। पाकिस्तान में रहने वाले दोस्त डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ट आईडी के जरिए ताउन कर सकते हैं, और बैरून मुल्क मुकीम अहबाब सुपर थैंक्स या चैनल मेंबरशिप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ताउन से ही हम आजादाना तौर पर बेहतर मवाद बना पाते हैं। तो जरूर गौर कीजिएगा। अगली गुफ्तगू तक सोचते रहें और मुतजस्सिस रहें।